Okay, good morning. Just let me know in the chat box whether am I audible or not. Good morning, Sadia. Good morning, good morning. Great. Uh, okay, so let's try to complete the नी बायोमैकेनिक्स. आज हम नी बायोमैकेनिक्स को कंप्लीट कर देंगे. एंड आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द मसल्स एंड ऑल दैट. वो किस तरह से काम करते हैं. मतलब सारा मेजरली जो आज का है वो सारा फंक्शन के ऊपर ही है. मतलब कि स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है वो किस तरह से काम करते हैं. अलॉन्ग विद दैट द पटेला एज वेल. ये पटेला का फंक्शन क्या होता है एंड पटेला के मूवमेंट्स किस किस तरह से होते हैं एंड हाउ आर दे ऑल्टर्ड, हाउ दे change with different positions of the knee joint. Okay, so let me just turn off my camera for now, and okay, I'm recording the class, and okay, it's great. ठीक है. So let's start from the starting only. First of all, let's talk about the muscles which are present near the knee joint. Okay. So first of all, we know this ki that on the anterior side we have got certain set of extensor set of muscles, and on the posterior side we have got some flexor set of muscles जो knee joint में present होते हैं. We need to remember this that there are 7 muscles which are present on the anterior side. Okay. Sorry, which are present on the posterior side, which are for the flexion of the knee joint. So we can talk about the hamstring group of muscles, and इसके अलावा हमारा just give me a second. Okay, so we can see that there are 5 flexors है ना. 5 there are flexors जो knee flexors की हम बात कर सकते हैं, which can be popliteus, gracilis and sartorius and all those muscles which we can talk about. तो हमारा popliteus भी flexor muscle में क्यों आ रहा है? Because it is one of the muscles which provides knee unlocking. तो knee unlocking अगर कर रहा है तो it means that it is initiating the flexion movement of the knee joint. Likewise we can talk about certain set of lateral muscles. तो बेसिकली ये चीज़ बोलना चाह रहा है कि नी जॉइंट के लैटरली जितनी भी मसल्स प्रेजेंट है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, तो इट इज सेइंग कि जैसे नी जॉइंट है, दिस इज द लैटरल साइड, दिस इज द मीडियल साइड. तो लैटरल साइड मसल्स जो है इफ दे विल कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफ कोर्स देयर विल बी एन इंक्रीज इन. कैन एनीवन टेल मी देयर विल बी एन इंक्रीज इन वेल्गस और वेरस अगर लैटरल साइड मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करती है? तो यू कैन जस्ट टाइप इट इन द chat box कि I am asking कि whenever there is a contraction of the lateral side muscles of the knee joint के lateral side की muscles जो है जब वो contract करेगी, it means we can talk about all the region all the muscles which are present on the lateral side, जो कि जैसे हमारी bicep femoris हो गई, which is attached on the head of fibula, and along with that all other muscles as well. So we can say whenever there is a contraction of the muscles on the lateral side of the knee joint, of course they are supposed to increase the valgus stress. Na, my voice is breaking. Just give me a second. I hope it's better now. Okay, great. So I was just saying कि नी जॉइंट के lateral side muscles जो है, of course we know this कि जब वो contract करेगी तो there is an increase in the valgus stress on the knee joint ना. Am I right or wrong? Because lateral side की muscle जब contract करेगी there will be an increased lateral to medial force. It means that there is an increased valgus force, or we can say it will try to increase the amount of valgus on the knee joint. Likewise we can talk about the medial side muscles also ना, कि whenever there is a contraction of the medial side muscles of the knee joint, they will tend to increase the varus force on the knee joint, or they will try to bring the knee joint into a valgus पोजीशन है ना, दैट इज मीडियल टू लैटरल फोर्स. तो यही चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है. लाइक व्हेनेवर देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ certain set of muscles, it will tend to increase certain set of
certain type of movement on the knee joint, either the valgus movement or the varus movement, or whether the flexion or the extension, depending upon कि हमारा extensor set of muscles are contracting or the flexor set of muscles are contracting. Okay, just give me a second. So now it is saying, now this thing is really important. Okay, first of all we can see this कि whenever a person is in weight bearing, and weight bearing में कब हम बोल रहे हैं, जब when the foot is completely on the ground, तो जब हमने foot को completely ground पे place किया हुआ है, और we can say that during the foot flat phase of the gait, हमारे gait में अलग अलग phase होते हैं ना, जैसे हम अगर stance phase की बात करें तो stance phase में we can say कि there is this heel strike and then foot flat and then mid stance and then heel off and then toe off ना, ये 5 स्टेज होते हैं ऑफ द स्टांस फेज. तो वी आर सेइंग मेजरली स्टांस फेज का जो यू कैन से द फुट फ्लैट फेज ऑफ द स्टांस फेज है, या फिर व्हेन द पर्सन इज बेयरिंग कंप्लीट वेट ऑन द फुट. सो इन दैट केस दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट फॉर नी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए there is a combination of two muscles, or you can say a set of muscles, that is the gluteus maximus and the soleus. Because we know this कि अगर whenever there is a contraction of this and this muscle, इन दोनों का resultant force की अगर हम बात करें, for the gluteus maximus we can say the resultant force is somewhere posterior superiorly directed, and likewise for the soleus we can say it is posterior inferiorly directed. But if we talk about the resultant, तो दोनों का resultant force की अगर हम बात करेंगे, it will be somewhere in the middle on the knee joint, and it will tend to push the knee joint posteriorly. So we can see this कि हाँ यहाँ पे during weight bearing soleus contracts, okay, and can assist the knee extension by pulling the tibia posteriorly, the soleus. ठीक है, it is इसका we can say this is the x component of the soleus which is parallel to the bone on which it is attached, है ना, या जिसके ऊपर ये insert हो रही है. And this is the y component which is perpendicular, है ना, ये हमारा y component है and which is perpendicular, or we can also say that ये हमारा translatory component है and this is the rotary component, the y component, है ना. So we can say majorly the y component. Likewise the gluteus maximus also we can talk about it. The gluteus maximus, the muscle, okay, the gluteus maximus, it is capable of assisting knee. It means whenever the person is in weight bearing knee, is in complete weight bearing, so in that case we can say for knee extension it is not solely relied on the quadriceps. Quadriceps के ऊपर completely rely नहीं करता है. There is a combination of contraction of the gluteus maximus and the soleus, and majorly we can say that the y components of both the muscles, they will उनका जो resultant force होगा, it will be on the knee joint and it will tend to push the knee posteriorly. Now the thing is कि हमें एक तो ये चीज़ समझ आ गया कि it is trying to push the knee joint posteriorly. Along with that we can also say ना कि the contraction of both the gluteus maximus and the soleus during weight bearing, it will also it will generate knee extension. This thing we have understood. Along with that it will also generate ankle plantar flexion, because we know that the person is in weight bearing and the weight bearing में है and the knee is going into extension position. So in that case the tibia is supposed to get pushed posteriorly ना, मतलब tibia जो है वो posteriorly move कर रही है, and in that case the angle between the shin of the tibia and the dorsum of the foot, that is increasing, and that is what we call as plantar flexion of the ankle. Just send a yes in the chat box अगर आपको ये concept समझ आया तो. I am saying, मैं again एक बार repeat करता हूँ, that whenever the person is in weight bearing, and weight bearing in the sense कि the foot is completely placed on the ground, so in that case for knee extension it is not only solely relied on the quadricep पे ही सिर्फ rely नहीं करता है. There is the gluteus maximus and the soleus as well. तो इन दोनों का contraction है that also assists for knee joint extension. अब किस तरह से करता है? We know that the resultant forces are somewhat in this and this direction. Okay, and because of that we have got these y components or the perpendicular components, and because of that you can say the resultant force of both these muscles, it is somewhere on the knee joint and it is trying to push the knee posteriorly. So because of that it is also trying to generate knee joint extension. And if we know कि हमारा foot जो है it is completely on the ground, कि हमारा foot पे कोई movement नहीं हो रहा है,
and the tibia is moving posteriorly. So don't you think there is this plantar flexion that is happening on the ankle? Because the angle, जैसे हमने कल भी बात करी थी, the angle between the dorsum of the foot and the shin of the tibia, that is increasing, and that is only called as plantar flexion. अब चाहे tibia move करे, चाहे foot move करे, but यहाँ पे the foot is stable and the tibia is moving backwards, and that's why we can say the contraction of both these muscles, it tends to generate knee joint extension along with that plantar flexion at the ankle. Okay, just send a yes in the chat box if this thing is clear to everyone. या अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप नो भी भेज सकते हो, ज़रूरी नहीं कि yes ही भेजना है. ओके, हिताश्री आपको क्लियर है? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. ओके, तो दीज आर ऑल पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर द एमसीक्यूज ना, कि during stance phase of this thing, or you can say during foot flat phase of the stance phase of the gait, what are the set of muscles which are responsible to produce knee extension and ankle plantar flexion, or you can say the combined contraction of gluteus maximus and soleus provides which movements on the leg? So it is supposed to be extension on the knee joint and plantar flexion at the ankle. तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, तो you must know this thing. Okay, I hope I am clear with this particular slide. I am moving forward. Okay, now talking about certain other set of muscles. देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, अभी हम आगे जाके बात करेंगे अबाउट नी एक्सटेंशन लैग. सॉरी, तो नी एक्सटेंशन लैग हमने, अगर सबको याद हो, हमने एक बार बात कर रही थी अबाउट एक्सटेंशन लैग इन केस ऑफ पेटेलेक्टमी. अगर कोई भी इंजरी हो रही है पटेला की, एंड इन दैट केस देर इज़ अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ पटेला, और लेट्स से हमारा पटेला का इंजरी हो गई है बिकॉज ऑफ विच द पटेला इज़ नॉट एबल टू फंक्शन इन द मैनर इट वॉज सपोज टू बी. जिस तरह से उसको करना चाहिए था उस तरह से इट इज़ नॉट फंक्शनिंग. तो वी नो दिस की पटेला जो है इट इंक्रीजेज द मूवमेंट आर्म. अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे जाके. बट द दिस थिंग, इतना हमने बात करी है दैट द मूवमेंट आर्म ऑफ द क्वाड्रिसेप का मूवमेंट आर्म जो है इट इज़ बीइंग इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पटेला. बट अगर पटेला इज एब्सेंट, तो इन दैट केस देर इज दिस नी एक्सटेंशन लैग. द पर्सन इज नॉट एबल टू कंप्लीट नी जॉइंट एक्सटेंशन, और यू कैन से लास्ट 30 डिग्रीज ऑफ नी एक्सटेंशन जो होता है, इट इज़ नॉट, द पर्सन इज अनेबल टू परफॉर्म दैट. तो नी एक्सटेंशन लैग हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन वेट बेयरिंग सिचुएशन में देखने को मिलेगा. whenever the person is sitting in a high sitting position, or you can say in a quadriceps chair. अगर quadriceps chair पे person बैठा हुआ है या किसी भी chair पे person बैठा है, and the person is asked to perform knee extension, and if the person lacks patella, है ना, तो in that case there is a decrease in the movement arm for the quadricep muscle, and because of that the person won't be able to perform the last 30 degrees of knee extension, and that is called as extension lag. लेकिन क्या उसी person को जब हम वेट बेरिंग में लेकर आएंगे, क्या वो पर्सन में तब भी एक्सटेंशन लैग देखने को मिलेगा? नहीं ना, बिकॉज वी नो दिस कि वी हैव गॉट दिस सेट ऑफ मसल्स विच आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू नी एक्सटेंशन. तो वेन एवर दैट पर्सन विल कम इनटू वेट बेरिंग एंड व्हेन द पर्सन विल परफॉर्म नी एक्सटेंशन, उस टाइम पे कभी भी नी एक्सटेंशन लैग उस पर्सन को नहीं देखने को मिलेगा. इट विल बी ओनली प्रेजेंट व्हेन द पर्सन विल बी इन द नॉन वेट बेरिंग पोजिशन. आई होप आई एम क्लियर विद दिस कंसेप्ट. ओके, कोई अगर इसमें, ओके ग्रेट, तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो. ओके ओके, अभी हम एक्सटेंशन लैग के कंसेप्ट को पूरा आगे जाके अभी बात करेंगे प्रॉपर्ली. नाउ कमिंग अप टू ओके, नाउ कमिंग अप टू दिस थिंग. यहाँ पे okay, so there are certain other muscles. Of course we know that we have got the vastus lateralis, the quadriceps set of muscles, no, vastus lateralis, vastus medialis, and the mid में present है vastus intermedialis and rectus femoris. तो if we have a look from the frontal side, है ना, अगर हम मतलब anterior side से अगर हम view यहाँ पे देखते हैं, तो in that case we can say that the rest of the two muscles, मतलब हमारी vastus intermedialis and rectus femoris, they are directed upwards, है ना, superiorly directed है. But the vastus lateralis and the vastus medialis, they are directed somewhere around at an angle of 35 degree or 40 degree. So it means कि these are the muscles which are also contributing to the stability of the patella, है ना. मतलब there is a contraction of all these muscles which eventually they will contribute, because देखो अगर सिर्फ superiorly directed force होता, तो in that case patella की lateral stability compromise होने के chance थे, because patella might have been moving a bit laterally या फिर medially,
लेकिन उसको उसको मेक श्योर करने के लिए कि पटेला का लैटरल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, पटेला एक्सेसिवली लैटरली मूव ना कर जाए या पटेला एक्सेसिवली मीडियली मूव ना कर जाए, उसको भी मेक श्योर करने के लिए we have got these set of muscles, the vastus medialis and the vastus lateralis, which are directed in these two directions, which again which ensure, जैसे हमने shoulder में पढ़ा था ना, we have got certain set of muscles which ensure the stability of the GH joint, and जिसको हमने dynamic stabilization में पढ़ा था या फिर static stabilization में हमने कुछ structures के नाम पढ़े थे जो कि हमारा GH joint की stability को ensure. Likewise we can say we have got these two muscles directed at these set of angles, and again they ensure the stability of the patella. Now this question arises, देखो आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे vastus medialis जो है इसका एंगल वर्टिकल से इट इज़ अ बिट मोर देन द एंगल ऑफ द vastus lateralis. इसका भी थोड़ा बहुत रीज़न है. द रीज़न फॉर दैट इज नी जॉइंट पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, फिजियोलॉजिकल वैल्गस और वेरस, कोई बताएगा? नी जॉइंट पे वी हैव गॉट हाँ एग्जैक्टली, नी जॉइंट पे वी हैव गॉट फिजियोलॉजिकल वैल्गस, नॉर्मल वैल्गस प्रेजेंट. वैल्गस मीन्स दिस एंड दिस, है ना. इसके लिए मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ ये तो सिंस वी हैव गॉट अ फिजियोलॉजिकल वैल्गस, तो इट मीन्स अगर हमारा क्वाड्रिसेप टेंडन एंड द पटेलर टेंडन व्हेन लाइक इन दोनों में जब टेंशन डेवलप होगा, ऑफ कोर्स इन दोनों का भी एक रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टेड लैटरली. तो इट मीन्स देर इज अ हाई चांस ऑन द पटेला टू मूव लैटरल, मतलब लैटरल साइड इसका डिस्ट्रैक्ट होने का या सबलक्सेट होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज वी हैव गॉट दिस फिजियोलॉजिकल वैल्गस, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज टू फोर्सेस दे आर डायरेक्टेड एट एन एंगल, एंड जिनका रिजल्टेंट फोर्स जो निकलता है दैट इज अबिट टुवर्ड्स द लैटरल. इतना ज़्यादा फोर्स नहीं है, बट स्टिल दिस अमाउंट ऑफ फोर्स इज स्टिल सफिशिएंट, बिकॉज पटेला का वेट भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है. पटेला इज ऑल्सो अगेन अ स्मॉल बोन. तो सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारा पटला एक्सेसिवली लैटरल ट्रैक ना कर जाए, लैटरली शिफ्ट ना कर जाए या सबलक्सेट ना कर जाए, वी नीड टू हैव दिस मीडियली डायरेक्टेड फोर्स जो कि थोड़ा सा ज़्यादा एंगल पे है एज कम्पेयर टू द मीडियल एंगल. तो इट मीन्स कि देखो यहाँ पे मैं ये दिखाता हूँ जो हमें अभी डायग्राम देख रहे थे, ये वाला. तो इट मीन्स कि देर इज दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द लैटरल साइड पटेला के ऊपर बिकॉज ऑफ द क्वाड्रिसेप टेंडन एंड बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द पटेला टेंडन. तो इट मीन्स हमारे पास थोड़ा सा मीडियली डायरेक्टेड फोर्स जो है, थोड़ा सा इसका एंगल ज़्यादा होना चाहिए सो एज टू मेक श्योर कि हमारा पटेला एक्सेसिवली सबलक्सेट ना कर जाए. एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न कि क्यों हमें मीडियल साइड पे या वास्टस मीडियलिस का एंगल थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द एंगल ऑफ द वास्टस लैटरलिस. आर वी क्लियर विद दिस? ओके, तो लाइक फिर से बताऊँ मैं. ओके, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये इस वाले हमने डायग्राम में देखा था दैट हमारे पास फिजियोलॉजिकल वैल्गस प्रेजेंट. फिजियोलॉजिकल वैल्गस मीन्स कि इट इज़ लाइक इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन ना, यहाँ पे मीडियल एंगल इज मोर देन 180. वो सब छोड़ो, मतलब फिजियोलॉजिकल वैल्गस हमें पता है ना, वैल्गस मीन्स दिस थिंग लैटरल टू मीडियल फोर्स, एंड फिजियोलॉजिकल नॉर्मल, फिजियोलॉजिकल मीन्स नॉर्मल नेचुरल, है ना, नेचुरल वैल्गस हमारे पास प्रेजेंट है. एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल वैल्गस ऑफ कोर्स वी नो वी हैव, हमारे पास ये क्वाड्रिसेप टेंडन प्रेजेंट है एंड वी हैव गॉट दिस पटेलर टेंडन एज वेल. तो जस्ट अ सेकेंड, मैं कैमरा भी ऑन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा एक्शन से भी समझ आए. तो हमारे पास दिस क्वाड्रिसेप टेंडन इज प्रेजेंट एंड उसके बाद हमारे पास पटेलर टेंडन प्रेजेंट है. एंड ये दो फोर्सेज जो हमारे पास एक एंगल पे प्रेजेंट है, इनका एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लैटरल साइड. यस और नो, इतना क्लियर हुआ? यस सर. ओके, तो सिंस वी नो कि हमारे पास ये लैटरली डायरेक्टेड रिजल्टेंट फोर्स है बिकॉज दीज टू फोर्सेज दे आर एट एन एंगल, तो इसको मेक श्योर करने के लिए कि हमारा पटेला, मतलब बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप टेंडन, बिकॉज क्वाड्रिसेप टेंडन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देर इज दिस रिजल्टेंट फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी ना लैटरली डायरेक्टेड, एंड देर विल बी एन इंक्रीज चांस और इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ द पटेला टू सबलक्सेट टुवर्ड्स लैटरल साइड. लैटरल साइड की तरफ पटेला का सबलक्सेट होने के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे वेन एवर दिस फोर्स विल इंक्रीज. जब भी हमारा क्वाड्रिसेप मसल का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा उतना ही फॉर श्योर हमारा जो पटेलर टेंडन में जो फोर्स है वो भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज मेक श्योर करना है कि दोनों फोर्सेस इक्वल रहे. एंड अगर ये दो फोर्सेस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ऑफकोर्स यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी एंड देयर इज एन इंक्रीज चांस ऑन द पटेला टू सबलक्सेट लैटरली.
तो सब लैटरली सबलक्सेट करने के चांसेस पटेला के ज़्यादा है. अब टू मेक श्योर कि पटेला एक्सेसिवली लैटरली शिफ्ट ना कर जाए या लैटरली सबलक्सेट ना कर जाए, हमारे पास क्वाड्रिसेप मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ज़रूरी है. एंड क्वाड्रिसेप मसल का कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से मेक श्योर कर रहा है पटेला की स्टेबिलिटी, क्योंकि हम वी कैन सी दिस कि हमारे पास यहाँ पे एक मीडियली डायरेक्टेड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ना, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा मीडियल साइड की तरफ डायरेक्ट करता हुआ फोर्स हमारे पास होना चाहिए, सो एज टू मेक श्योर कि हमारा जो पटेला है वो एक्सेसिवली लैटरली शिफ्ट ना कर जाए. एंड उसको मेक श्योर करने के लिए हमारे पास ये वास्टस मीडियलिस प्रेजेंट है. वास्टस मीडियलिस का अगर हम देखेंगे यहाँ पे एंगल जो प्रेजेंट है, इट इज़ अ बिट मोर देन द एंगल ऑफ द वास्टस लैटरलिस. अगर ये 35 डिग्री पे है तो इट इज़ एट 40 डिग्री. 40 डिग्री पे है तो मीडियल साइड की तरफ ज़्यादा डायरेक्ट कर रहा है ना ये. तो अगर मीडियल साइड की तरफ ज़्यादा डायरेक्ट कर रहा है तो अब ये ज़्यादा मेक श्योर करेगा कि हमारा पटेला जो है वो लैटरली एक्सेसिवली शिफ्ट ना कर जाए बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द क्वाड्रिसेप टेंडन एंड द पटेलर टेंडन. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं एक लाइन में इसको अगर फिर से बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ऊपर एंड नीचे की तरफ जो डायरेक्टेड फोर्सेस है पटेला के ऊपर, इनका रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड्स द लैटरल साइड. तो पटेला के ऊपर लैटरल शिफ्ट करने की या लैटरली सबलक्सेट करने के चांसेस ज़्यादा है. अब हमें कोई ऐसा फोर्स की ज़रूरत है जो थोड़ा सा मीडियल साइड की तरफ ज़्यादा डायरेक्ट कर रहा हो, ताकि हमारा एक काउंटर फोर्स आ जाए एंड पटेला का सबलक्सेट करने के चांसेस थोड़े कम हो जाए. तभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास मीडियल साइड का जो डायरेक्टेड फोर्स है उसको हमने थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दिया एज कम्पेयर टू लैटरल साइड डायरेक्टेड फोर्स. सोचो अगर इसका अपोजिट होता, एक तो हमारे पास लैटरल रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल वैल्गस, उसके अलावा ये 40 डिग्री होता एंड ये 35 डिग्री होता, तो उस केस में तो वास्टस लैटरलिस तो और ज़्यादा ऐड करता ना लैटरल सबलक्सेशन ऑफ पटेला को. उसको थोड़ा बहुत प्रिवेंट भी तो करना है हमें. तो इसलिए ये ऐसा रखा हुआ है कि 40 डिग्री मतलब द वास्टस मीडियलिस इज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीडियल साइड, ताकि हमारा मीडियल साइड की तरफ फोर्स जो है थोड़ा सा इंक्रीज ज़्यादा हो. एंड तब हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसको काउंटर एक्ट करे जो हमारा लैटरल डायरेक्टेड फोर्स जो हमने अभी आगे डायग्राम में देखा था बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल वैल्गस, उसको काउंटर एक्ट ज़्यादा कर पाए. तभी हमारे पास एंगल ऑफ द वास्टस मीडियलिस इज अ बिट मोर देन द एंगल ऑफ द वास्टस लैटरलिस. यस और नो सादिया, क्लियर हुआ? yes sir. ठीक है, ओके. नाउ ठीक है, तो दिस इज वन थिंग. इसके अलावा वी कैन सी दिस ऑल्सो कि ये तो हम एंटीरियर साइड से देख रहे हैं. अगर हम सेम चीज़ को अगर हम लैटरल साइड से देखते हैं तो वी कैन सी दिस की वास्टस लैटरलिस एंड वास्टस मीडियलिस दे आर ऑल्सो डायरेक्टेड अ बिट पोस्टीरियरली. तो इट मीन्स वी कैन से कि लेट्स से अगर ये हमारा पटेला है तो एक तो ये सुपीरियरली मतलब डायरेक्टेड है एंड एट एन एंगल, मतलब एक एंगल पे डायरेक्टेड है सुपीरियरली. ये आप इसको फ्रंट साइड से देख रहे हो, ठीक है. इसी को अगर आप थोड़ा लैटरल साइड से देखोगे तो इन दैट केस आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा पीछे की तरफ भी फेस कर रहा है. इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड बैकवर्ड्स ऑल्सो. तो अगेन अगर ये बैकवर्ड भी फेस कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री, तो अगेन इट इज़ ट्राइंग टू पुश द पटेला टुवर्ड्स द फीमर. So we can say the contraction of the vastus lateralis and the vastus medialis majorly, or you can say the contraction of the quadriceps muscles as a whole. They also try to push the patella on the femur, and again they try to increase the amount of stability of the patella on femur. So it means we can say कि हमारा जो पटेला है या फिर जो quadricep muscle है, it is trying to increase the amount of stability of the patella on femur दो तरीके से. एक तो इट इज़ डायरेक्टेड 55 डिग्रीज बैकवर्ड्स, इट मीन्स इट इज़ ट्राइंग टू पुश द पटेला ऑन द फीमर. तो एक तो इस तरह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है. एंड द अदर थिंग इज कि वी कैन सी दैट द वास्टस मीडियलिस एंड द वास्टस लेटरलिस दे आर डायरेक्टेड इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस. एंड अगेन दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ लैटरल सबलक्सेशन ऑफ द पटेला. पटेला को कोई एक्सेसिव लैटरल सबलक्सेशन ना हो जाए, चाहे वो मीडियल साइड पे हो चाहे वो लैटरल साइड पे हो. लैटरल साइड की तरफ ज़्यादा चांसेस है होने के. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगेन वी कैन से वी हैव गॉट दीज सेट ऑफ फोर्सेज जो कि दोनों डायरेक्शन में है, एंड दे मेक श्योर कि हमारा पटेला का एक्सेसिव लैटरल सबलक्सेशन ना हो, ठीक है. एंड इन दीज टू वे वी कैन से कि हमारा जो क्वाड्रिसेप मसल्स है दे मेक श्योर कि पटेला का जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे. आर वी क्लियर विद दिस? यस और नो? ओके. तो एंड इसमें अगर मैं एक चीज़ अगर आपसे मैं और पूछता हूँ कि आउट ऑफ दीज 4 मसल्स,
विच आर द टू मसल, मतलब हमारा कौन सा वास्टस लैटरलिस, मीडियलिस, इंटरमीडियलिस एंड रेक्टस फेमोरिस, इन चार में से कौन सी दो मसल हमें देखने को मिल रही है विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द पटिला? आई थिंक लैटरलिस एंड मीडियलिस, Yes, and Achilles. है ना, हाँ, बिकॉज लैटरलिस मीडियलिस लैटरल ट्रांसलेशन को भी प्रिवेंट कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि वो ना हो। एंड अलॉन्ग विद दैट लैटरलिस एंड मीडियलिस, देखो यहाँ पे हम ये लैटरल साइड से देख रहे हैं तो हमें लैटरलिस देखने को मिल रहा है, बट मीडियलिस भी उस साइड पे 55 डिग्री पे ही प्रेजेंट है बैकवर्ड्स। बट इफ यू टॉक अबाउट द वास्टस इंटरमीडियलिस एंड रेक्टस फेमोरिस, दे आर डायरेक्टेड अपवर्ड्स, वो एक एंगल पे प्रेजेंट नहीं है। तो वी कैन से कि ठीक है, ये भी मेक श्योर कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मेजर जो दो हम सेट ऑफ क्वाड्रिसेप मसल्स की अगर हम बात करेंगे, दैट इज सपोज टू बी द वास्टस लैटरलिस एंड वास्टस मीडियलिस। दे आर मेकिंग श्योर कि हमारा पटिला जो है उसका वो उसके ऊपर फोर्स रहे टू एंड विच इज पुशिंग टूवर्ड्स द फीमर, एंड इसके अलावा लैटरल स्टेबिलिटी भी पटिला की मेंटेन रहे, ठीक है। तो मेजरली इट इज द वास्टस लैटरलिस एंड द वास्टस मीडियलिस ऑफ द क्वाड्रिसेप सेट ऑफ मसल्स, and these are the two major ways in which the quadriceps set of muscles they make sure there is stability of the patella on femur. तो इट मीन्स अगर हमारा क्वाड्रिसेप मसल अगर सचो वीक हो जाए या क्वाड्रिसेप मसल अगर लेट्स से अगर कंप्लीटली पैरालाइज है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हमारा कितना पटिला के सबलक्सेशन कितना चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, इसकी स्टेबिलिटी कितनी इफेक्ट हो सकती है। ओके ठीक है, आई जस्ट वांट कि सबको ये चीज़ क्लियर हुआ ना कि वास्टस मीडियलिस थोड़ा सा ज़्यादा मीडियली फेस क्यों कर रहा है, बिकॉज पटेला के ऊपर एक लैटरल डायरेक्टेड फोर्सेस ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल वैल्गस। उसको काउंटरएक्ट करने के लिए थोड़ा सा वास्टस मीडियलिस को थोड़ा सा ज़्यादा और अंदर की तरफ मीडियल साइड की तरफ फेस करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा काउंटरएक्ट कर पाए हमारे पटेला को, एंड इसका लैटरल सबलक्सेशन जो है उसके चांसेस कम हो जाए। ओके, नाउ कमिंग अप टू जस्ट गिव मी अ सेकंड। now coming to this thing, the particular influence on quadricep muscle function, ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले भी। देखो इसको मैं यहाँ हाँ इस डायग्राम में दिखाता हूँ। ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि दैट ऑफ कोर्स वी हैव गॉट द, तो पटेला की दो मेजर फंक्शंस की हम बात कर सकते हैं ना। एक तो ये है कि इट एक्ट्स एज एनाटॉमिकल पुली, और यू कैन से इट इंक्रीजेज द मूवमेंट आर्म ऑफ द क्वाड्रिसेप मसल, एंड द सेकंड फंक्शन इज कि it prevents any kind of trauma or any kind of force directly on the femur, क्योंकि जब भी हम फॉल करें तो फोर्स इज बीइंग टेकन अप बाय द पटेला के ऊपर फोर्स आ रहा है, एंड इट इज़ नॉट गोइंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द फीमर। तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, मतलब फीमर के ऊपर कोई फ्रैक्चर ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले हमारा पटेला जो है वो फ्रैक्चर में जाती है। तो वी कैन से ये दो मेजर फंक्शंस है पटेला के। तो इसमें पटेला का ये वाला फंक्शन हमने एक देखा था, that ki of course we have got this quadricep muscle which is going all the way, which is crossing the knee joint, going over the patella, and that's why we are calling the patella as a sesamoid bone, and eventually it gets attached on this particular region. ये इस region को हम क्या बोलेंगे? Tibial tuberosity. It means it shows its insertion on the tibial tuberosity. Okay, so now the thing is कि तो we can understand this कि because of the presence of patella की presence होने की वजह से हमारा quadricep muscle जो है it is going over the patella, and because of that if we talk about the movement arm or the effort arm, अब effort arm कहाँ से कहाँ तक होगा? कोई भी movement arm अगर होता है it is from a fulcrum all the way up to certain force, चाहे वो load की वजह से हो चाहे वो effort की वजह से हो, है ना, वो shortest distance जो है that is called as the movement arm। तो यहाँ पे हमारा knee joint का axis जो है that will be, मतलब लेट्स टेक इट समवेयर हियर ना, कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसी एक्सिस मतलब इसी फ्रंटल एक्सिस के अराउंड हमारा जो नी जॉइंट है इट विल गो इनटू फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ना। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक्सिस होगा या फल्क्रम होगा, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा वी कैन से एफर्ट प्रेजेंट है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, दिस एफर्ट, दिस फोर्स ऑफ द क्वाड्रिसेप मसल और द टेंडन। तो वी कैन से ये हमारा एफर्ट है एंड ये हमारा फल्क्रम है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द एफर्ट आर्म और द मूवमेंट आर्म ऑफ द एफर्ट that is supposed to be this one, यहाँ से लेके somewhere up to this point. Now let's say if there is a surgical removal of patella, या फिर patella अगर absent है यहाँ पे, तो in that case the quadricep tendon will go all the way, मतलब ये बिल्कुल टच करता हुआ जाएगा इन मसल्स को, and in that case अगर हम movement arm की बात करेंगे from the fulcrum up to the quadricep tendon, तो वो कहीं यहाँ से यहाँ तक हमें देखने को मिलेगा, and of course it will decrease, and because of that the movement arm or the effort arm for the quadricep muscle will decrease, and in that case in order to produce knee joint extension, अगर knee joint extension अगर produce करना है तो for that the quadricep muscle needs to produce more amount of force, है ना, because
नी एक्सटेंशन टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज नी एक्सटेंशन टॉर्क हमारा एक सर्टेन वैल्यू का है, एंड उसके लिए अगर हमें उतना सफिशेंट थ्रेशोल्ड टॉर्क को अगर हमें क्रॉस करना है, तो फॉर दैट वी शुड नो कि या तो हम फोर्स इंक्रीज करेंगे या हम टॉर्क मूवमेंट आर्म इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे मूवमेंट आर्म तो हमारा डिक्रीज हो गया, तो फॉर श्योर हमारे क्वाड्रिसेप को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड इतना स्ट्रेंथ अगर क्वाड्रिसेप में प्रेजेंट नहीं है, तो इन दैट केस फॉर श्योर वी विल गेट टू सी दिस quadricep lag or knee extension lag. Are we clear with this? Yes, sir. Okay. तो in this case we will see majorly last का 15 डिग्री majorly हमें देखने को मिलता है, and this thing is really important कि last 15 degrees of non weight bearing extension is not completed. ठीक है, non weight bearing is important, and I think till now we are all clear कि non weight bearing इतना specifically यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, because weight bearing एक्सटेंशन लैग हमें नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ टू मसल्स ना, कौन कौन सी, द ग्लूटियस मैक्सिमस एग्जैक्टली है ना, एंड द सोलियस। वी वोंट गेट टू सी, इवन इस पर्सन में अगर पर्टिकुलर एब्सेंट होता तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता फॉर नी एक्सटेंशन, बिकॉज तब भी ये नी एक्सटेंशन कंप्लीट कर पाएगा। बट अगर ये पर्सन नॉन वेट बेयरिंग में आता है, तो इन दैट केस हमें नी एक्सटेंशन लैग स्पेसिफिकली लास्ट का 15 डिग्रीज में मेजरली देखने को मिलेगा, बट दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्वाड्रिसेप, बिकॉज क्वाड्रिसेप का स्ट्रेंथ अगर बहुत कम है तो इन दैट केस इवन 15 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्वाड्रिसेप। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि कोई भी अगर हम किसी भी जॉइंट पे अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं ना, आई थिंक इसकी वहाँ पे हर चीज़ के लिए हमारे पास एक थ्रेशोल्ड टॉर्क की ज़रूरत होती है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ, जैसे लेट्स से अगर मैं एक डोर को क्लोज या ओपन मुझे करना है, तो उस डोर को क्लोज करने के लिए लेट्स से हमने जो भी कैलकुलेशन किया उससे हमें ये निकल के आया कि लेट्स से 20 न्यूटन मीटर का हमें टॉर्क चाहिए, 20 न्यूटन मीटर का हमें टॉर्क की ज़रूरत है। उतने टॉर्क की उस टॉर्क से अगर हम कम टॉर्क अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन डैट केस वो जो डोर है वो हम क्लोज या ओपन नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर। तो द थिंग इज़ कि अब वो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए या तो हम मूवमेंट आर्म इंक्रीज करें, मतलब डोर के फल्क्रम है, डोर का जो जॉइंट है वहाँ से जितना दूर जाके हम फोर्स अप्लाई करें डोर पे, है ना, या फिर हम उस फोर्स के ऊपर जो अपना जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डोर पे वो अपना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दे। चाहे हमने मूवमेंट आर्म इंक्रीज़ नहीं किया, बट हमने फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। दोनों में से कोई भी एक चीज़ को हमें इंक्रीज़ करना है, लेकिन इवेंचुअली दोनों का प्रोडक्ट जो है, मतलब फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म, वो हमें इवेंचुअली इंक्रीज़ करना है, एंड हमें वो थ्रेशोल्ड टॉर्क पहुंचने की ज़रूरत है। हमने वो टॉर्क क्रॉस किया, अब हम उस डोर को क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। लाइकवाइज द सेम थिंग हैपन्स हियर एज वेल, कि हमारा नी एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन के लिए अगर हम यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स की बात करें, तो फॉर नी एक्सटेंशन हमारे पास एक थ्रेशोल्ड टॉर्क की ज़रूरत है। अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड टॉर्क अगर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, चाहे वो क्वाड्रिसेप के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो या फिर हमारा मूवमेंट आर्म की वजह से हो, अगर वो थ्रेशोल्ड टॉर्क रीच नहीं कर पा रहे, तो इन दैट केस नी एक्सटेंशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो या तो हमारे क्वाड्रिसेप को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या फिर हमें नी ये मूवमेंट आर्म इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। बट हमें इवेंचुअली दोनों का जो वैल्यू है, प्रोडक्ट जो है, मतलब हमारा फोर्स एंड मूवमेंट आर्म का वो टॉर्क जो है, वो टॉर्क हमें रीच करने की ज़रूरत है, वो थ्रेशोल्ड टॉर्क हमें अटेन करने की ज़रूरत है, सो एज टू प्रोड्यूस नी एक्सटेंशन। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की है कि पटेला जो है इट लेंथन्स द मूवमेंट आर्म, इट इंक्रीजेज द मूवमेंट ऑफ द कॉर्डेज। सेम कहानी है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। एंड अलॉन्ग विद दैट देर इज अनदर थिंग दैट इट ऑल्सो एक्ट्स एज एनाटमिकल पुली, दैट बेसिकली मीन्स दैट इट डिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ फोर्स। मतलब हम देखेंगे कि एक पुली क्या करता है, जैसे एक वेल है, एक वेल के अंदर एक हमने बकेट रखा हुआ है, उससे हमने एक रोप को बांध के रखा है, एक व्हील है एंड उसके अराउंड वो रैप है रोप। द थिंग इज़ कि उस रोप को जब हम पुल कर रहे हैं, तो नाउ देर इज़ कंप्लीट फिजिक्स बिहाइंड इट, कि मतलब कौन से फोर्सेस किस तरफ डायरेक्टेड है। लेकिन द थिंग इज़ कि वी सी दिस कि हमारा जो फोर्सेस होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स मतलब डायरेक्टेड है। मतलब लेट्स से अगर हम कहते हैं कि इस व्हील के अराउंड ये रोप अगर टाई किया हुआ है, तो इन डैट केस अगर यहाँ से हम पुल कर रहे हैं, तो इन डैट केस इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं इस व्हील के अराउंड, तो दैट इज़ डायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवेंचुअली जो अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ रहा है दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ फोर्स जितना हमें बकेट उठाना पड़ रहा है। तो इसलिए पुलिंग अ बकेट बिकम्स रियली ईजी अगर हम एक पुली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ की हम बात कर सकते हैं जब हमने क्लैविकल की बात करी थी। क्लैविकल हमने सबसे पहली क्लास में सबसे पहली चीज़ हमने जो पढ़ी थी दैट वाज क्लैविकल, एंड क्लैविकल में हमने देखा था क्लैविकल हैज़ दिस एस शेप्ड स्ट्रक्चर। तो उसका एस शेप्ड स्ट्रक्चर होने का रीज़न ये है कि जो फोर्स हमारा आर्म से क्लैविकल के ऊपर आ रहा है इट इज़ डायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पे अगर अलग अलग डायरेक्शन में अगर फोर्स डायरेक्टेड होगा, तो इवेंचुअली जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा हमारा
मे बी मतलब एट द sternoclavicular जॉइंट या फिर पूरे के पूरे क्लैविकल के ऊपर, दैट विल बी नॉट दैट मच जितना वो तब होता अगर हमारी क्लैविकल सीधी होती, ठीक है। तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा इस जॉइंट के ऊपर आ रहा है, दैट इज मच लेसर देन द फोर्स अगर क्लैविकल सीधी प्रेजेंट होती तो इसलिए दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिंग द फोर्सेज टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन। वही चीज़ हमारी यहाँ पे भी हो रही है इन द एनाटॉमिकल पुली, इट इज डायरेक्टिंग द फोर्सेज in different directions, and because of that now it becomes easier for the quadriceps to pull the tibia anteriorly so as to produce knee extension. So that is the function of the anatomical pulley. लेकिन इसके अलावा it also increases the movement arm, and movement arm वाली कहानी जो है वो भी हमने समझ ली है। ये तो चीज़ें हमें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड क्या सबको ये क्लियर हुआ कि मूवमेंट आर्म की जो हम बात कर रहे हैं या एफर्ट आर्म की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो एफर्ट आर्म इज फ्रॉम द फल्क्रम up to the effort or the quadriceps tendon. Are we clear with this? Yes, sir. ठीक है। आई जस्ट वांट कि सबको ये चीज़ क्लियर हो, बिकॉज ये चीज़ अगर रह जाते हैं ना, हमें ये तो पता है कि मूवमेंट आर्म इंक्रीज कर, किसका मूवमेंट आर्म इंक्रीज कर रहा है वो गुल है, वो चीज़ हमें पता ही नहीं कि किसका मूवमेंट आर्म इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए पूरा कंसेप्ट कि कहाँ पे मूवमेंट आर्म कौन सा इंक्रीज हो रहा है, मतलब किस तरह से बेसिकली काम कर रहा है। एंड अगेन थिंग इसकी मतलब वही चीज़ है, आप जिसको जितना ज़्यादा पढ़ते हो ना, मतलब मेरे को तो बहुत चीज़ें फैसिनेट करती है कि मतलब नेचर हैज़ मेड एवरीथिंग लाइक इन सच अ वे कि मतलब इतना प्रिसाइसली एंड इतना मतलब फिजिक्स को भी ध्यान में रखा हुआ है एंड हर चीज़ को ध्यान में रखा हुआ है, एंड उसके अकॉर्डिंग मतलब हम इसको जितना पढ़ते जाए उतना कम है। एंड इसकी मतलब कहते हैं ना, इसकी ब्यूटी को जितना एडमायर करें, मतलब कि ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है एंड पटेला का होने का सिग्निफिकेंस क्या है, वरना नहीं भी होता, लेकिन होने का सिग्निफिकेंस ये है कि हम नी एक्सटेंशन कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो इसलिए मतलब यू कैन जस्ट एडमायर द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और ऑफ द नेचर एज वेल ना, मतलब कितना ब्यूटीफुली हर चीज़ को प्लेस किया हुआ है अपनी अपनी जगह पे। ओके, सो नाउ द थिंग इज की हाँ, नाउ द थिंग इज की हाँ, हमने बात कर लिया अबाउट द मूवमेंट एंड द एनाटॉमिकल पुली। एंड इसके अलावा हमने क्वाड्रिसेप लैग की बात कर ली। एंड क्वाड्रिसेप लैग हमेशा, जस्ट कीप दिस इन माइंड, कि हमेशा नॉन वेट बेरिंग में देखने को मिलेगा। कभी भी वेट बेरिंग में हमें दिस एक्सटेंशन लैग कभी भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ द सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस एंड सोलियस, है ना। एंड मेजरली उन दोनों मसल्स का भी कौन सा कंपोनेंट कोई बताएगा? उन दोनों मसल्स का वाई कंपोनेंट है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो एक्स कंपोनेंट है जो कि बोन के पैरेलल है, वो तो पैरेलल है, वो तो मतलब इतना काम नहीं करेगी, बट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है ना, ये वाला परपेंडिकुलर वाई कंपोनेंट्स, ये मेजरली रिजल्ट जो इसका आएगा दैट विल एक्सटेंड द नी जॉइंट, है ना। एंड नी जॉइंट के ऊपर पॉस्टीरियरली डायरेक्टेड फोर्स लाएगा वो। ओके, आई थिंक वी आर ऑल क्लियर विद दिस। एंड उसके बाद में नी कंप्लीट एक्सटेंशन, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द क्वाड्रिसेप क्रिएट्स एन एंटीरियर शेयर फोर्स ऑफ द टीबिया। ऑफ कोर्स यहाँ पे जब नॉन वेट बेरिंग में है तो द टीबिया इज सपोज टू मूव ओवर स्टेबल फीमर, एंड यहाँ पे क्वाड्रिसेप विल कॉन्ट्रैक्ट, टीबिया को पकड़ के आगे की तरफ लेकर आ रहा है, एंड नी पे एक्सटेंशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। एंड दैट्स वाई कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नॉन वेट बेरिंग नी एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीबिया इज मूविंग ओवर स्टेबल फीमर, एंड टीबिया का ट्रांसलेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इन केस ऑफ नी एक्सटेंशन, tibia is translating in which direction, anteriorly or posteriorly during knee extension? You can just even like type it anteriorly ना, इसमें ऐसा मत करो सब, ये तो बहुत इजी चीज़ है, मतलब tibia is the concave bone, तो knee extension and concave bone is supposed to move in the ट्रांसलेट इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसको बाकी शाफ्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो नी एक्सटेंशन में द शाफ्ट इज मूविंग एंटीरियरली, द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द कनकेव बोन इज ऑल्सो ट्रांसलेटिंग एंटीरियरली, है ना। लेकिन अगर सेम सिनेरियो अगर वेट बेरिंग में होता तो इफ द पर्सन वुड हैव कम इनटू वेट बेरिंग, एंड तब पर्सन अगर एक्सटेंशन कर रहा होता नी जॉइंट पे, मतलब पर्सन स्क्वाट पोजीशन से वापस इरेक्ट पोजीशन में आ रहा होता, इन दैट केस हमारा कौन सी बोन मूव करती, फीमर और टीबिया। वेट बेरिंग में नी एक्सटेंशन जब हो रहा है वहाँ पे कौन सी बोन मूव कर रही होती, फीमर, एग्जैक्टली, फीमर वुड हैव बीन मूविंग, एंड इन दैट केस नी अब हमारी कॉन्वेक्स बोन मूव कर रही है एंड नी एक्सटेंशन हो रहा है, तो नी एक्सटेंशन में शाफ्ट ऑफ फीमर इज मूविंग इज डायरेक्टेड इन विच डायरेक्शन, एंटीरियर और पोस्टीरियर। नी एक्सटेंशन में शाफ्ट इज मूविंग एंटीरियरली, तो दैट्स वाई जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है दैट इज सपोज टू ट्रांसलेट posteriorly, है ना, दैट इज सपोज टू ट्रांसलेट posteriorly।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी आपसे ये चीज़ पूछता है ना कि नी जॉइंट पे मतलब नी एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्शन के टाइम पे कौन सी बोन कहाँ ट्रांसलेट करती है, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू आस्क, पता नहीं मैं फंबल क्यों कर रहा हूँ, इट इज़ योर ड्यूटी टू आस्क दिस कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर द पर्सन इज इन वेट बेरिंग और इन नॉन वेट बेरिंग, ये पर्सन वेट बेरिंग में है कि नॉन वेट बेरिंग में है। अगर पर्सन वेट बेरिंग में है तो वी हैव टू टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ द फीमर, एंड अगर पर्सन नॉन वेट बेरिंग में है तो इन दैट केस वी हैव टू टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ द टीबिया, तब हमें टीबिया की मूवमेंट की बात करनी है। एंड उसके बाद में वी कैन अंडरस्टैंड कि कॉन्केव बोन मूव कर रही है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी ड्यूरिंग एक्सटेंशन और ड्यूरिंग फ्लेक्शन, एंड अगर कॉन्वेक्स बोन मूव कर रही है तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ओके इसके अलावा मैंने कल एक चीज़ ग्रुप में सेंड किया था, कौन सा, सेलार जॉइंट के बारे में ना, SELLAR सेलार जॉइंट। ठीक है, तो सेलार जॉइंट में बेसिकली क्या होता है, जैसे हम जैसे बाय कॉन्डोलाइट जॉइंट जहाँ पे होता है, जैसे हम वी कैन मेजरली टॉक अबाउट दीज टाइप ऑफ जॉइंट्स, मेजरली मेजरली जैसे हमारा कौन सा एल्बो हो गया या नी हो गया, मेजरली हम वहाँ पे ऐसी बात करते हैं। तो थिंग इज कि देखो यहाँ पे नॉर्मली वी कैन से कि हमारा टीबिया जो है या फीमर जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इफ़ वी हैव अ लुक और प्रिसाइजली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वी कैन सी कि हमारा जो, जैसे अगर हम फीमर की बात करते हैं, फीमर इज डिस्टल फीमर इज लाइक दिस है ना, मतलब दो कॉन्डाइल्स है, तो इट मीन्स दो हमारे पास कॉन्वेक्सिटीज है एंड एक कॉन्केविटी है। कितने कितने लोग इस पर एग्री कर रहे हैं? फीमर, डिस्टल फीमर पे वी हैव गॉट 2 कॉन्वेक्सिटीज एंड 1 कॉन्केविटी, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो इट मीन्स हम जितना सिंपली अभी तो हमने समझने के लिए बोल दिया कि हमने वी आर टेकिंग द फीमर एज द कॉन्वेक्स बोन एंड टीबिया एज द कॉन्केव बोन, लेकिन अगर हम प्रिसाइजली अगर हम देखें तो यहाँ पे डिस्टल टीबिया के ऊपर दो कॉन्वेक्सिटीज़ हैं एंड एक कॉन्केविटी है। द थिंग इज की देखो, अब अगर ये इसको इस तरह से देखते हैं, मतलब ये दो कॉन्वेक्सिटीज़ हमें देखने को मिल रही है एंड ये एक कॉन्केविटी है बीच में, एंड नाउ इफ इट इज़ मूविंग ऑन अनदर सरफेस एंड ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पे अगर नी एक्सटेंशन हो रहा है एंड द शाफ्ट ऑफ द फीमर इज मूविंग एंटीरियरली, इसमें आपको विजुअलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि जो कॉन्वेक्सिटी दो कॉन्वेक्सिटीज़ है वो तो ऑफकोर्स पीछे की तरफ डायरेक्ट करेगी, पीछे की तरफ मूव करेगी, लेकिन जो बीच का कॉन्केविटी है यहाँ पे इट इज़ डायरेक्टेड एंटीरियरली। तो मतलब अगेन यहाँ पे कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल ही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, लेकिन द थिंग इज कि जब हमारा एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस जिसके पास दोनों को मतलब दो कॉन्वेक्सिटीज़ है एंड एक कॉन्केविटी है, एंड इफ द नी जॉइंट इज शोइंग एक्सटेंशन, तो इन डैट केस आपको ऑफकोर्स अगर यहाँ पे फीमर एक्सटेंड कर रहा है तो इन डैट केस जो कॉन्वेक्सिटीज़ है दे आर ट्रांसलेटिंग पॉस्टीरियरली, एंड जो कॉन्केविटी है बीच में दैट इज ट्रांसलेटिंग एंटीरियरली। कॉन्केव सरफेस जो है वो कॉन्केविटी वाला जो ट्रांसलेशन है वो शो करेगा, मतलब इन द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमारा शाफ्ट मूव कर रहा है, एंड दो कॉन्वेक्सिटीज़ जो है वो कॉन्वेक्सिटी वाला जो ट्रांसलेशन है वो शो करेगा, मतलब जब शाफ्ट का एंटीरियर मूवमेंट हो रहा है जो दो कॉन्वेक्सिटीज़ है वो पॉस्टीरियरली ट्रांसलेट कर रही है। क्या हमें ये क्लियर हुआ कि ऊपर से गया? इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं क्या? ये चीज़ सबको समझ आया कि नहीं आया, या ड्रॉ करके दिखाऊं? Yes. ड्रॉ करके दिखाऊं मैं? ओके, सो द थिंग इज कि देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जल्दी होता है। ओके ओके, सो इट्स लाइक कि देखो यहाँ पे इतना टाइम क्यों ले रहा है ये? मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फीमर, तो फीमर में वी आर सेइंग कि एक इसके पास दो कॉन्वेक्सिटीज़ है, मतलब दो कॉन्डाइल्स है एंड बीच में एक कॉन्केविटी हमें देखने को मिलती है, समथिंग लाइक दिस। ओके, इवन टीबिया की भी अगर हम बात करते हैं, टीबिया में ऑल्सो वी कैन से कि हमारे पास वो है, लेकिन टीबिया को लेट्स टेक इट इज एज अ सिंपल स्ट्रक्चर। अभी के लिए इसको हम सिंपल स्ट्रक्चर ले लेते हैं टीबिया को, ठीक है? टीबिया को हम ऐसे ले लेते हैं। नाउ द थिंग इज कि आई एम सेइंग कि हमारे पास दो कॉन्वेक्सिटीज़ है ना, ये एंड ये वाले है ना, एंड ये, तो द थिंग इज कि हमारे पास एक कॉन्केविटी है, दिस वन,
अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम whenever we are performing knee flexion और knee extension, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो दो कॉन्वेक्सिटीज़ है, ऑफ कोर्स दे विल शो द ट्रांसलेशन, जो कि एक कॉन्वेक्स बोन शो करती है, एंड जो बीच में कॉन्केविटी है इट शोज द ट्रांसलेशन, जो कि एक कॉन्केव बोन शो करेगी. किस तरह से? जब जब व्हेनेवर इट इज़ गोइंग, देखो अब इसको अगर हम इस साइड वेज अगर हम इसको देखते हैं, लैटरल साइड से अगर हम इसको देखते हैं, आई होप मैं डायग्राम बना पाऊँ उसका. अगर मैं इसको लैटरल साइड से अगर मैं इसको देखना चाहूँ, तो इन दैट केस हाँ, ये नी जॉइंट हो गया. नी जॉइंट पे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पे नी फ्लेक्शन हो रहा है. तो नी फ्लेक्शन के टाइम पे द शाफ्ट, ये हमारा पोस्टीरियर साइड है, दिस इज द एंटीरियर साइड. अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब नी फ्लेक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन के टाइम पे देयर इज द शाफ्ट ऑफ फीमर विच इज मूविंग पोस्टीरियरली. तो अगर शाफ्ट पोस्टीरियरली मूव कर रहा है, तो कॉन्केव बोन का फीचर क्या होता है कि इट ऑल्सो ट्रांसलेट्स इन द डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमारा शाफ्ट ऑफ द बोन मूव करता है. तो अगर हमारा शाफ्ट ऑफ द बोन इज मूविंग पोस्टीरियरली, तो इन दैट केस जो कॉन्केविटी होगा ना, कॉन्केविटी विल मूव, जो कॉन्केविटी होगा इट विल ट्रांसलेट पोस्टीरियरली. ये हमारा पोस्टीरियर ट्रांसलेशन शो करेगा. लेकिन अगर हम बात करते हैं अबाउट कॉन्केविटी, तो दो कॉन्केविटीज़ है, दे विल ट्रांसलेट एंटीरियरली. ये जो कॉन्केविटीज़ जो है, सॉरी कॉन्वेक्सिटीज़ जो है, दे विल ट्रांसलेट एंटीरियरली. मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ. बिकॉज इन केस ऑफ सेलार टाइप ऑफ जॉइंट, SELLAR, सेलार, उस केस में हम देखते हैं कि देर आर टू कॉन्वेक्सिटीज एंड वन कॉन्केविटी. एंड इन दैट केस वी विल सी कि वहाँ पे दो कॉन्वेक्सिटीज एंड एक कॉन्केविटी जब प्रेजेंट है, तो इन दैट केस जब भी हम नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो इन दैट केस कॉन्वेक्स वाला जो स्ट्रक्चर्स है उस बोन का, दे विल शो द फीचर्स ऑफ ए कॉन्वेक्स बोन ऑफ कोर्स, एंड कॉन्केव बोन जो है वो कॉन्केव बोन वाला फीचर शो करेगा. तो इन दैट केस इफ देर इज फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट, जहाँ पे फीमर इज मूविंग, तो शाफ्ट ऑफ फीमर इज मूविंग बैकवर्ड्स पोस्टीरियरली, तो इन दैट केस आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो कॉन्केव है बीच में, इट विल ऑल्सो ट्रांसलेट बैकवर्ड्स. एंड उसके अलावा जो दो कॉन्वेक्सिटीज़ हैं, दोज विल ट्रांसलेट एंटीरियरली. एंड दैट इज द टाइप ऑफ ट्रांसलेशन दैट विल गेट टू सी. अगर हम और कीनली और प्रिसाइजली अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बुक में ऑफकोर्स यहाँ पे इतना डिटेल में यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है. बुक में सिर्फ नॉर्मल बात की गई है कि हमारी फीमर जो है दैट इज अ कॉन्वेक्स बोन एंड टीबिया इज अ कॉन्केव बोन. लेकिन अगर इसको हम और डिटेल में अगर हम देखते हैं, तो इन दैट केस हमें इस टाइप के मूवमेंट देखने को, ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा. यहाँ पे थोड़ा सबको आइडिया लगा इसके बारे में? हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. दिस इज कॉल्ड एज SELLAR, सेलार टाइप ऑफ जॉइंट. ठीक है. ओके. चलो ठीक है. अब यहाँ पे एंड वी नो दिस की इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द ACL एंड ऑल दैट. एंड ओके, नाउ कमिंग अप टू दिस थिंग. हाँ, ओके, यहाँ पे they have just shown this कि while performing knee flexion or while performing knee extension, तो we can see कि the load arm is basically increasing. दोनों में हम देख रहे हैं load arm जो है that is increasing, but in case of non weight bearing it is showing कि बस ये चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि the movement arm of the load it increases ना. लोड मतलब कि यहाँ पे देखो लोड का मूवमेंट आर्म ये है, मतलब यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द फल्क्रम और फ्रॉम द नी जॉइंट अप टू द डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ द नी, तो दैट इज दिस मच डायरेक्शन, दिस मच डिस्टेंस, ये बहुत कम है. यहाँ पे एज वी ब्रिंग द नी इनटू अ बिट ऑफ एक्सटेंशन, यहाँ पे वी कैन सी नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, फ्रॉम द नी जॉइंट और फ्रॉम द फल्क्रम up to the load, now it has increased. In complete knee extension it has become maximum. So we can say that with complete knee extension the load arm becomes maximum in non weight bearing knee extension. And अगर हम weight bearing knee movement की बात करते हैं, तो in that case with flexion or we can say as the person goes downwards, तो in that case इस person का load जो है that is increasing, load arm जो है that is increasing. ठीक है. The shortest distance from the load or from the line of gravity up to the knee joint, that is increasing with knee flexion. So we can just utilize this thing and we can use this in different cases. Let's say अगर हमारे पास एक individual आता है who has a good strength in their quadriceps, and if we want them to strengthen it even further, so in that case we can ask the person to go for weight bearing knee flexion or knee extension. जहाँ पे हम देख सकते हैं as the person is going into knee flexion, the load arm is increasing and the exercise is becoming much more difficult for the individual. Likewise we can talk about an individual जिसमें weight bearing movements are a bit difficult, so in that case we can ask the person to go for non weight bearing knee extension, and we can see with knee extension the load arm is increasing and the exercise is becoming difficult for the individual. ठीक है. तो it means यहाँ पे बस ये चीज़ दिखाई गई है कि how the load arm increases with knee extension
एंड विथ नी फ्लेक्शन इन केस ऑफ नॉन वेट बेरिंग एंड इन वेट बेरिंग सिचुएशन, ठीक है, बस ये चीज़ है यहाँ पे। ओके, बट आर वी क्लियर विथ कंसेप्ट टिल नाउ दैट जो कि हमने डिस्कस करे हैं, जो मसल्स के, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसल्स किस तरह से काम करते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सब अब हम आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पैटेलोफेमोरल जॉइंट के ऊपर। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? यहाँ तक हमें क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, ओके। अब हमारा ये चीज़ मेरे को पैटेलोफेमोरल जॉइंट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है दैन टिबियोफेमोरल जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट्स जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा मतलब वो है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल भी है एक टाइम पे। ओके, सबसे पहले हमने ये एनाटॉमी में देखा था कि राइट नाउ हियर वी आर हैविंग अ लुक एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैटेला, एंड पैटेला का पोस्टीरियर पार्ट में हम देख सकते हैं वी हैव गॉट द मीडियल फेसेट, सॉरी है ना, वी हैव गॉट लैटरल फेसेट। ऐसे हमारे पास बीच में एक प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल रिज, एंड देयर इज अनदर फेसेट दैट इज कॉल्ड एज द ऑड फेसेट, इट इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड, ठीक है। तो इट इज ऑन द मीडियल साइड, दैट इज कॉल्ड एज द ऑड फेसेट। इसके अलावा द मीडियल फेसेट, द लैटरल फेसेट एंड द वर्टिकल रिज, दैट इज दैट इतना सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा पैटेला का। इसके अलावा दिस इज द बेस ऑफ द पैटेला, दिस इज द एपेक्स ऑफ द पैटेला, दिस मच वी नो, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। दिस इज अ सेसमॉइड, लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन ऑफ द बॉडी, दिस वी नो। ओके, नाउ द थिंग इज कि देखो, जब भी हम ये एक गोल्डन रूल याद रखना कि जब भी हम नी फ्लेक्शन कर रहे होते हैं ना, नी फ्लेक्शन के टाइम पे जो पटेला है, पटेला सारे के सारे मीडियल मूवमेंट शो करता है, मतलब पटेला इट मूव्स टूवर्ड्स द मीडियल साइड। तो एज अ होल मैं आपको अगर डायग्राम दिखाता हूँ तो ओके, एक तो सबसे पहले ये है विथ नी फ्लेक्शन, जितना हमारा नी फ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है, पटेला एज अ होल इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द मीडियल साइड, ये मीडियल साइड की तरफ शिफ्ट होता है। एंड इसके साथ में पटेला खुद की भी अगर हम बात करते हैं कि पटेला का टिल्टिंग देखने को मिलता है, पटेला का स्पिनिंग हमें देखने को मिलेगा एंड शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। तो शिफ्टिंग, टिल्टिंग एंड स्पिनिंग, ये सारे मूवमेंट्स पटेला के जो होते हैं, अभी हम इस पर आएंगे प्रॉपर्ली। तो ये सारी मूवमेंट्स की जो पटेला की होती है, ये सारी मीडियल साइड की तरफ हमें देखने को मिलती है वेर एज द नी इज गोइंग इन टू फ्लेक्शन। तो नी फ्लेक्शन एंड पटेला की मीडियल साइड मूवमेंट्स ये एक साथ होती है, मतलब जैसे ही हमारा नी फ्लेक्शन में जा रहा है, द पटेला इज बाउंड टू मूव टूवर्ड्स द मीडियल साइड। इसके साथ में हमें देखने को मिलेगा पटेला इज टिल्टिंग मीडियली, इट इज शिफ्टिंग मीडियली, इट इज ट्रांसलेटिंग मीडियली, सारे मीडियल मूवमेंट्स ऑफ पटेला हमें देखने को मिलते हैं। तो इन दिस केस अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि हमने ये भी कल देखा था ना कि जब हम नी फ्लेक्शन कंप्लीट करते हैं तो इन दैट केस देयर इज मैक्सिमम आर्टिकुलेशन ऑफ द पटेला ओवर फीमर ना, यस और नो। जब हम नी एक्सटेंड करते हैं तो इन दैट केस पटेला बहुत स्लाइटली बहुत हल्का सा टच कर रहा है फीमर को, एंड दैट इज द रीजन कि वाई वी आर एबल टू इजीली ग्लाइड द पटेला इन केस ऑफ नी एक्सटेंशन। लेकिन जैसे हम नी फ्लेक्शन में लेकर आते हैं उस टाइम पे ग्लाइड करना तो छोड़ो, इवन पटेला को पैल्पेट करना भी मुश्किल है, यस और नो, है ना। तो ठीक है, तो इट मीन्स एग्जैक्टली, तो इट मीन्स कि नी फ्लेक्शन में जब है तो इन दैट केस देयर इज मैक्सिमम आर्टिकुलेशन ऑफ दिस थिंग। तो एंड हमें ये पता है कि नी फ्लेक्शन के टाइम पे मैक्सिमम प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर पुट हो रहा है हमारा पटेला का फीमर के ऊपर, एंड इसके साथ में फीमर पटेला का सारे के सारे मीडियल मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो डोंट यू थिंक कि हमारा पटेला में मीडियल फेसेट का ज़्यादा अमाउंट का कंप्रेशन देखने को मिलेगा हमें एज द नी फ्लेक्शन इंक्रीजेस। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली, आपने सबने नाम सुना होगा कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। तो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली में मेजरली क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फीमर है एंड जो पटेला है दोनों के बीच में एक हाइलैंड कार्टिलेज प्रेजेंट है जो कि स्मूथनेस को मेंटेन मेक श्योर करता है दोनों बोन्स के बीच में, वरना तो दोनों आपस में रगड़ेगी एंड बोन का इरोजन होगा। तो देयर इज दिस हाइलैंड कार्टिलेज। तो उस हाइलैंड कार्टिलेज का अगर इरोजन होता है, अगर वो कार्टिलेज टूटना शुरू होता है, जस्ट लाइक द वे जो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है, वैसे ही अगर हमें वो हाइलैंड कार्टिलेज इफेक्ट होता हुआ मिल रहा है इनके बिटवीन द पटेला एंड द फीमर, मुझे ये कंडीशन प्रेजेंट है मेरे में। तो अगर मैं भी लास्ट टाइम जब मैं एक बार गया था ट्रैकिंग वगैरह कर रहा था, तो इन दैट केस ये पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है बिटवीन द पटेला एंड द फीमर, एंड मेनली ऑन द मीडियल साइड पे आपको ज़्यादा पेन फील होगा कॉन्ट्रोमलेशिया पटेली में, बिकॉज देर इज मोर मूवमेंट ऑफ द फीमर ऑफ द पटेला टुवर्ड्स द मीडियल साइड, ज़्यादा शिफ्टिंग, ज़्यादा टिल्टिंग, ज़्यादा ट्रांसलेशन ऑफ पटेला का जो है वो मीडियल साइड की तरफ ज़्यादा होगा एज द नी फ्लेक्शन इंक्रीजेज। एंड ऑल्सो वी सी कि नी जो पटेला है उसका फोर्स ऑन द फीमर ऑल्सो इंक्रीजेज।
है ना, ज़्यादा आर्टिकुलेट कर रहा है एंड ज़्यादा प्रेशर पुट कर रहा है ऑन द फीमर। एंड इसका भी रीज़न है, इसका रीज़न बेसिकली हमारा ये डायग्राम शो करता है, ये वाला। एज द नी फ्लेक्शन इज इंक्रीजिंग वी कैन सी दिस कि हमारा क्वाड्रिसेप का फोर्स सुपीरियरली एंड पटेलर टेंडन का फोर्स इन्फीरियरली, दोनों का एंगल जो है दैट इज डिक्रीजिंग। एंड जितना वो ज़्यादा पीछे की तरफ बैकवर्ड फेस करना शुरू करेंगे उतना हमारा रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करेगी ना, अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, अगर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, लेट्स से अगर हमने नी फ्लेक्शन और इंक्रीज किया तो इन डैट केस हमारे दोनों फोर्स वेक्टर्स जो है वो कहीं यहाँ एंड यहाँ फेस कर रहे हैं। तो इन डैट केस अकॉर्डिंग टू द पैरेलल, अगर हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो इन डैट केस हमारा रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू और इंक्रीज कर जाएगी। जब कंप्लीट नी फ्लेक्शन होगा तो इन डैट केस दोनों फोर्सेस ये एंड ये दोनों ओवरलैप करेंगे, दोनों के दोनों बैकवर्ड फेस कर रहे हैं एंड मैक्सिमम बैकवर्ड फेसिंग फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हमें देखने को मिलेगा। Are we clear with this? So we know this key as we are increasing the knee flexion, there is an increased amount of resultant force of the patella on the femur, and that is because of the decrease in the angle between the quadriceps का force and the patellar tendon का force. इनका angle decrease कर रहा है and because of that the resultant force is increasing. This one. And because of that with complete knee complete नहीं बोलूँगा but with increasing knee flexion, अभी मैं ये ऐसा मैंने क्यों नहीं बोला वो भी मैं अभी उस पर आता हूँ, लेकिन with increasing knee flexion we can see that the amount of compression of the patella increases on the femur and majorly कौन से facet पे, medial facet पे ज़्यादा compression हमें देखने को मिलेगा because more forces on the medial side on the patella than the lateral side, and that is the reason कि why we can see more affection of the medial side cartilage in case of chondromalacia patelli than the lateral side cartilage. Are we clear with this? Yes, sir. ठीक है, दिस थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये सब तो क्वेश्चंस है ही है, लेकिन इसके अलावा वी मस्ट नो दिस एज वेल। ओके, तो नाउ द थिंग इज़ कि अगर हमें ये चीज़ समझ आ गया कि ओके किस तरह से मूव करता है, अब हम इस पे आ जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस एंगल, सॉरी दिस रेशो, और इसके बाद में फिर हम पटेला की प्रिसाइज मूवमेंट्स की हम बात करते हैं। ओके, नाउ द थिंग इज़ कि देयर इज़ दिस ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस मच वी ऑल नो ना कि नी फ्लेक्शन के साथ में पटेला कहाँ मूव करता है, सुपीरियरली या इन्फीरियरली? हाँ, Inferior. inferior. Patella moves inferiorly, exactly, with knee flexion. And I think you can even palpate this as well ना, patella के ऊपर हाथ प्लेस करो, फिंगर प्लेस करो, and as you are performing knee extension the patella is moving superiorly, as you perform knee flexion patella moves inferiorly. Okay, तो now the thing is कि एक तो हमने ये मूवमेंट देख लिया, लेकिन इसके साथ में there are two terms, एक हम कहते हैं patellar flexion and the other term is patellar extension. तो ऑफकोर्स पटेलर फ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन एंड पटेलर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन। तो पटेलर फ्लेक्शन अगर हम टर्म यूज़ कर रहे हैं तो पटेलर फ्लेक्शन मीन्स कि एक तो इसी से दिखाता हूँ। ओके, एक द थिंग इज कि लेट्स से ये हमारा पटेला प्रेजेंट है पूरा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम नी फ्लेक्शन कर रहे हैं तो नी फ्लेक्शन के टाइम पे देर इज दिस पटेला विच इज़ मूविंग, विच इज़ ग्लाइडिंग और ट्रांसलेटिंग इन्फीरियरली, इतना तो हमें पता है ना। नी फ्लेक्शन के टाइम पे पटेला मूव्स इन्फीरियरली, लेकिन इसके साथ में अगर हम प्रिसाइजली मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं पटेला की, इट मूव्स समथिंग लाइक दिस, है ना। इट मीन्स दैट अगर मैं ये बोलूँ कि एपेक्स जो है, एपेक्स मूव्स बैकवर्ड्स, दिस कैन बी समवट लाइक द मूवमेंट ऑफ द सैक्रम। सैक्रम में भी हमने कुछ ऐसे ही, मतलब वहाँ पे हमने टर्म यूज़ किया था न्यूटेशन एंड काउंटर न्यूटेशन, यहाँ पे हम वो टर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है कि विथ नी फ्लेक्शन द पटेला मूव्स लाइक दिस। Patella moves inferiorly, the apex of the patella, the inferior most part of the patella, it moves backwards, and the base of the patella, the top most part of the patella, it moves forwards anteriorly. So this is the type of movement जो कि हमें देखने को मिलेगा during knee flexion, and this is the type of movement, इसका opposite that we will get to see in case of knee extension. Are we clear with this? तो knee extension में there is एक तो superior movement of the patella, along with that there is anterior translation of the apex and backward movement of the base, ठीक है। तो this is patellar flexion, this is patellar extension. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, ओके, आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हुई, पटेलर फ्लेक्शन एंड पटेलर एक्सटेंशन। तो यू मस्ट प्रिसाइजली नो कि तो इसका मतलब अगर हम इस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब ऑफकोर्स ये तो हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन के अलॉन्ग होगा ना। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में देयर इज दिस मूवमेंट ऑफ पटेला, मतलब जहाँ पे नी फ्लेक्शन के टाइम पे पटेला
एक का एपेक्स मूव्स बैकवर्ड्स एंड बेस मूव्स फॉरवर्ड्स. तो ये मूवमेंट ऑफ पटेला इज सपोज टू बी अराउंड विच एक्सिस. व्हाट डू यू थिंक? सोच के बताओ. मुझे भी नहीं पता, मुझे भी अभी सोचना पड़ेगा कौन सा एक्सिस के अराउंड हो रहा है. बट यू थिंक ये वाला एंड ये वाला मूवमेंट ऑफ पटेला इज हैपनिंग अराउंड Frontal विच plane. एक्सिस? फ्रंटल Frontal एक्सिस? plane. Plane. नहीं नहीं नहीं, फ्रंट सैजिटल प्लेन ना. Sagittal plane. हाँ, सैजिटल प्लेन. ठीक है. आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये चीज़ एकदम से नहीं आती है. एंड अभी भी मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अभी मैंने जब ये चीज़ विजुअलाइज करी तब मुझे समझ आया कि हाँ, दिस इज सपोज टू बी अराउंड द सैजिटल प्लेन. लेकिन ये चीज़ है कि आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले मुझे भी सोचने में टाइम लगता था. धीरे धीरे ये चीज़ बेटर हुई, आगे जाके और बेटर. तो इट मीन्स कि जितना आप, वही तभी कहता हूँ कि जितना इसको विजुअलाइज करोगे ना, उतना उतना क्विकली आप इस चीज़ पे आ पाओगे कि मतलब कौन से प्लेन एंड कौन से एक्सिस के अराउंड हो रहा है. एंड आई नो कि सबको पता है इसके बारे में कि प्लेन एंड एक्सिस किस तरह से फिगर आउट करना है, एंड हर कोई कर लेगा. लेकिन द थिंग इज कि कितना जल्दी आप कर पा रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द थिंग इज कि आप कितना आपने प्रैक्टिस किया उस चीज़ को, या फिर आपने कितना विजुअलाइज किया आपने उस मोमेंट को, है ना. तो इट इज़ अराउंड द सैजिटल प्लेन, अलोंग द सैजिटल प्लेन एंड अराउंड द फ्रंटल एक्सिस, है ना. राइट टू लेफ्ट एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस या कोरोनल एक्सिस के अराउंड. तो इट मीन्स कि तो this type of movement of the patella is supposed to be around these axes and planes. And इसके अलावा patella as a whole it is moving inferiorly during knee flexion and superiorly during knee extension. तो कुछ इस टाइप का movement we can see during patellar flexion and patellar extension. And of course patellar flexion is seen during knee flexion and patellar extension is seen during knee extension. Okay. ओके. इसके अलावा हमने, ठीक है, मैक्सिमम पटेलर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग फ्लेक्शन, लीज स्टेबिलिटी ड्यूरिंग एक्सटेंशन, ये सब हमें पता है. नाउ द थिंग इज कि लेट्स टॉक अबाउट दिस इंडेक्स और दिस रेशियो दैट इज कॉल्ड एज द इंसॉल सैल्वेटी इंडेक्स. ठीक है. मैं इससे पहले कोई चीज़ दिखाता हूँ. एक आप लोगों ने कोई भी इंडियन, मतलब इंडियन साइंटिस्ट या इंडियन पर्सनैलिटी के नाम पे आपने कोई देखा है, कोई स्केल या कोई भी चीज़ अगर आपने कुछ देखा हो? मतलब हम लोग बाहर के, मतलब जर्मन या फिर बाहर के जो होते हैं उनके नाम पे मैकेंजी नाम हो गया, ये सब नाम हो गया, हम बहुत देखते हैं. इंडियन किसी ने देखा हो कोई इंडियन नाम किसी भी स्केल के लिए या किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए कोई इंडियन नेम? एक तो हमारा आता है, एक होता है, एक है सिंग्स इंडेक्स, SINGH सिंग्स इंडेक्स, वो हम ऑर्थो में पढ़ेंगे आगे जाके. एंड दूसरा मैंने कल देखा, पता नहीं, हो सकता है आपको पता भी हो शायद पहले से, मुझे नहीं आइडिया था इसके बारे में. दैट इज़ दिस वन, दैट इज़ कुप्पुस्वामी इंडेक्स. किसी को आइडिया इसके बारे में? आइडिया है? चला आपको पता था? सर कुपुस्वामी स्केल ही है ना ये? हाँ 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 हाँ, स्केल एग्जैक्टली. हाँ, मुझे आइडिया नहीं था इतना. दैट इज़ फॉर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर. मतलब आई फेल्ट गुड किया मैंने ये पढ़ा. मतलब इट इज़ बेसिकली सोशो इकोनॉमिक, जो हम पेशेंट का असेसमेंट करते हैं ना, तो उस टाइम पे उसका सोशो इकोनॉमिक कि मतलब वो सोशो इकोनॉमिकली कितना साउंड है कितना नहीं है, तो उसके लिए एक स्केल यहाँ पे ये है कि इट बेसिकली इट इज़ लाइक कि पर्सन का एजुकेशन लेवल कितना है, कि वेदर द पर्सन इज़ अ ग्रेजुएट और नॉट, या प्रोफेशनल, बिकॉज मतलब PhD या ऑनर्स वगैरह कुछ है कि नहीं, या फिर इलिटरेट, उसके अकॉर्डिंग. यहाँ पे दूसरा हो गया ऑक्यूपेशन क्या है उस इंडिविजुअल का, एंड इसके अलावा मंथली सैलरी क्या है. लेकिन ऑफ कोर्स मंथली सैलरी तो चेंज होती जाएगी हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे इट इज़ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 1998 का कुछ दिया हुआ है एंड 2012 का दिया हुआ है. तो 1998 में तो 13,500 से ज़्यादा अगर सैलरी थी तो दैट वाज मतलब हाईएस्ट स्कोर. लेकिन यहाँ पे अब तो 2012 में इट वाज 32. मतलब इकोनॉमी डाउन हुई है ऑफकोर्स, एंड उसके अब तो आई थिंक शायद और बढ़ गया होगा, ये लेटेस्ट जो अगर होगा तो वो. तो इट मीन्स उसके अकॉर्डिंग फिर देन वी कैन कम अप विथ दिस थिंग कि पर्सन का एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कि अपर में आता है, अपर मिडिल में आता है, मिडिल में आता है, लोअर में. तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन टॉक अबाउट दिस. दैट इज़ कुप्पुस्वामी स्केल. ओके, दैट वाज ग्रेट कि चैताली आपको आइडिया था. और किसी को भी आइडिया था इस बैच में? ओके, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, तो मुझे भी. अरे गौरी, दैट्स ग्रेट. हमें तो नहीं पढ़ाया अपने कॉलेज वगैरह में कहीं पे, तो मुझे तो कल ही पता, बिकॉज कल मैं ये चीज़ बना रहा था, एक केस स्टडी है उसके, वहाँ पे मेरे को इसका आइडिया लगा. ओके, दैट्स ग्रेट, आप लोगों को आइडिया है इसके बारे में. ये किसी बुक में दिया हुआ है क्या? मे बी किसी बुक में दिया हुआ, मैंने शायद नहीं पढ़ा होगा ये चीज़. तो ओके, ठीक है.
चलो तो इट्स ग्रेट कि आपको इसके बारे में आइडिया था पहले से. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द इंसॉल सैल्वेटी इंडेक्स. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वी आर जस्ट सपोज टू टॉक अबाउट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पटेला एंड द लेंथ ऑफ द पटेलर टेंडन. मतलब हमारा पटेला की लेंथ कितनी है एंड इसके नीचे पटेलर टेंडन की लेंथ कितनी है. ऑलमोस्ट इट इज सीन कि नॉर्मल इंडिविजुअल है the length of the patella and the length of the patellar tendon, they both are supposed to be almost equal. तो it means कि we can say कि अगर हम रेशियो की बात करें, the ratio किस का मतलब the length of the patella and the length of the patellar tendon, तो ratio of course it will come 1:1 ना, 1/1. Yes or no? So it means the index or the ratio, the insol salvati index, that comes out to be 1:1. It means we can say कि दोनों की लेंथ हमारी लेंथ ऑफ द पटेलर टेंडन एंड लेंथ ऑफ द पटेला, इसमें ये ध्यान रखना कि दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, मतलब रेशियो दोनों 1:1 है. तो पहली जो वैल्यू है, पहला वाला जो वैल्यू है दैट इज ऑफ द लेंथ ऑफ द पटेलर टेंडन, एंड दूसरा वाला जो 1 है दैट इज द लेंथ ऑफ द पटेला. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेट्स से अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि इफ इन एन इंडिविजुअल इट वॉज असेस्ड that the insol salvati index became 2:1. तो we must know कि पहला वाला जो 2 है that they are trying to talk about the length of the tendon, and दूसरा वाला जो 1 है that is the length of the patella. तो इसका मतलब है कि पटेलर टेंडन की लेंथ ज़्यादा है as compared to the length of the patella. या फिर let's say if the ratio becomes 1:2, it means that the patellar tendon की length is half the length of the patella, है ना. तो इट मीन्स कि उस केस में 1:2 अगर रेशियो हमें देखने को मिलता है तो दैट केस वी कैन से कि पटेलर टेंडन की लेंथ अब कम हो गई है एंड पटेलर की लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द पटेलर टेंडन. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द इंसॉल सैल्वेटी इंडेक्स. नाउ द थिंग इज कि जब भी ये इंडेक्स अगर या ये रेशियो अगर अफेक्टेड होगा तो इन दैट केस ऑफकोर्स हमें पटेला या तो एबनॉर्मली सुपीरियरली प्लेस्ड या एबनॉर्मली इन्फीरियरली प्लेस्ड देखने को मिलेगा. जो पटेला की अपनी पोजीशन है उससे या तो पटेला थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होगा या उससे थोड़ा सा पटेला इन्फीरियरली प्रेजेंट होगा. तो दैट इज कॉल्ड एज पटेला ऑल्टा या पटेला बाजा, है ना. मतलब पटेला ऑल्टा मीन्स देर इज दिस पटेला जो कि सुपीरियरली प्लेस्ड है, जो अपनी एबनॉर्मली अपनी जगह से ऊपर प्रेजेंट है, एंड द अदर कंडीशन इज कॉल्ड एज पटेला बाजा जहाँ पे इट मीन्स दैट पटेला अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेजेंट है. नाउ द थिंग इज कि हम अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम पटेलर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वी नो दिस कि यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे अगर मैं थोड़ा बहुत शेड करके अगर मैं दिखाऊँ तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे इस साइड पे, चलो ऐसी थी यहाँ पे. द थिंग इज कि यहाँ पे अगर हम इंटर कॉन्डेलर सल्कस की अगर हम बात करते हैं, नॉच की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ मच डीपर हेयर, है ना. यहाँ पे ज़्यादा डीप है एज कम्पेयर टू अपर पार्ट. यहाँ ऊपर की तरफ अगर हम आते हैं इट बिकम्स लेस डीपर. जितना हम नीचे की तरफ जा रहे हैं इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डीपर. कितने लोग इस पर एग्री कर रहे हैं? आई डोंट नो, ये जितना भी बन रहा है ना. मतलब ये चीज़ है कि जितना हम इन्फीरियरली आते हैं इतना इट बिकम्स मोर डीपर ना द नॉच बिटवीन बोथ द कॉन्डाइल्स, एंड जितना हम सुपीरियरली जाएंगे यहाँ पे द नॉच बिटवीन बोथ द कॉन्डाइल्स इट बिकम्स शैलोअर. अब अगर पटेला सुपीरियरली प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स पटेला की स्टेबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी. अगर पटेला एबनॉर्मली ऊपर प्रेजेंट है, सुपीरियरली प्रेजेंट है अपनी जगह से, कम होगी ना, इट विल डिक्रीज. यस और नो? आई एम सेइंग कि डिस्टल कॉन्डाइल की अगर मैं बात करता हूँ, डिस्टल जो फीमेल कॉन्डाइल्स हैं इनके बीच में जो सल्कस प्रेजेंट है इट इज़ मच डीपर. जितना हम नीचे की तरफ आता है, जितना हम डिस्टल आते हैं, एंड जितना हम प्रॉक्सिमल जाते हैं उतना जो सल्कस है इट बिकम्स शैलोअर. तो अब अगर पटेला शैलो जगह पे प्रेजेंट है तो उस जगह पे पटेला की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी? इट विल कम होगी, इट विल, है ना, इट विल डिक्रीज, है ना. पटेला जितना एबनॉर्मली सुपीरियरली प्लेस्ड है उतना इट इज़ बिकमिंग इसको ये जो नकल ना इसको आप लेके चलो एज द नॉच बिटवीन द कॉन्डाइल्स. तो आई थिंक बहुत इजीली समझ आएगा कि ये जो नॉच है बिटवीन द कॉन्डाइल्स, ये नॉच डीपेस्ट है जितना हम डिस्टली आते हैं, एंड उतना ही शैलो हो जाता है जितना हम सुपीरियरली जाते हैं. तो ऑफकोर्स अगर पटेला सुपीरियरली प्रेजेंट है तो उतना पटेला की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एंड जितना पटेला इन्फीरियरली प्रेजेंट है बिटवीन द कॉन्डाइल्स उतना पटेला की स्टेबिलिटी ज़्यादा है. एंड दैट्स हम वीसी की जब हम नी एक्सटेंशन करते हैं उस टाइम पे पटेला मूव्स सुपीरियरली, एंड दैट इज कॉल्ड एज पटेलर एक्सटेंशन. एंड पटेला जब सुपीरियरली मूव किया
तो नी एक्सटेंशन के टाइम पे वी कैन सी की पटेला को हम इजीली ग्लाइड कर सकते हैं, या फिर पटेला की स्टेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन वही जब हमने नी फ्लेक्शन कंप्लीट किया, द पटेला हैज़ कम इन्फीरियरली एंड नीचे आके इट गॉट फिट कम्प्लीटली बिटवीन बोथ द कॉन्डाइल्स, है ना, एंड प्रॉपरली यहाँ पे अंदर फिट हो गया प्रॉपर। नाउ वी कैन सी कि अब इसकी स्टेबिलिटी प्रॉपर है, अब ये इतना ग्लाइड इतना इतना इनस्टेबिलिटी शो नहीं करेगा, काफ़ी स्टेबल हो गया पटेला, क्योंकि पटेला अब इन्फीरियरली मूव किया। तो ड्यूरिंग पटेलर फ्लेक्शन और ड्यूरिंग कंप्लीट नी फ्लेक्शन वी कैन से कि पटेला इज इन कंप्लीट फ्लेक्शन, इज इन कंप्लीट स्टेबिलिटी। एंड व्हेन द नी कम्स इनटू कंप्लीट एक्सटेंशन, या फिर जब पटेलर एक्सटेंशन होता है, तो इन दैट केस वी कैन से कि पटेला इज इन मैक्सिमम इंस्टेबिलिटी। एंड इसके अलावा अगर कंडीशन है जहाँ पे इंसॉल सैल्वेटी इंडेक्स हैज़ बिकम लेट्स से 2:1, तो जहाँ पे पहला वाला जो रेशो का जो पहला पार्ट है वो 2 हो गया एंड 1 दूसरा, तो इट मीन्स दैट द लेंथ ऑफ द पटेलर टेंडन इट हैज़ नाउ इंक्रीज्ड एबनॉर्मली। अब जब लेंथ ऑफ पटेलर टेंडन अगर ज़्यादा है, तो उस केस में पटेला जो अपनी जगह पे होना चाहिए था उससे थोड़ा सा ऊपर प्लेस होना पड़ेगा, उसको सुपीरियरली प्लेस होना पड़ेगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पटेलर ऑल्टा। एंड पटेला जितना सुपीरियरली प्रेजेंट है उतना पटेला की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, है ना, उतनी पटेला की स्टेबिलिटी अफेक्टेड होगी। एंड दूसरा कंडीशन है दैट इज पटेलर बाजा, जहाँ पे लेट्स से द रेशो बिकम्स 1:2, जहाँ पे जो दूसरा पार्ट है रेशो का वो इंक्रीज हो गया, और वी कैन से हमारा लेंथ ऑफ द पटेलर टेंडन हैज़ नाउ बिकम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द पटेला। तो इन दैट केस अगर हम देखते हैं तो इन दैट केस द पटेला इज प्रेजेंट एबनॉर्मली inferior टू द प्लेस जहाँ पे वो प्रेजेंट होना चाहिए था। तो अगर inferiorly प्रेजेंट है तो इन दैट केस इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन बोथ द कॉन्डाइल्स, एंड अगर दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में प्रेजेंट है तो इन दैट केस ऑफकोर्स वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी पटेला की, तो इट मीन्स कि वहाँ पे द पटेला विल बी मोर स्टेबल, इसकी मूवमेंट जो होगी डेट विल बी कॉम्प्रोमाइज, है ना। तो इट मीन्स कि पटेला बाजा के केस में ऑफकोर्स नोट अनडाउटेडली कि इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इट विल अफेक्ट द मूवमेंट्स ऑफ द नी जॉइंट एज वेल, बिकॉज अगर पटेला ही मूव नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, इसकी मोबिलिटी अगर अफेक्ट हो गई है, तो इन दैट केस नी जॉइंट की मूवमेंट एज अ होल भी अफेक्ट हो जाएगी। एंड इसके अलावा बिकॉज ऑफकोर्स अगर नी हमारा अगर पटेला मूव नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस हमारा जो मूवमेंट आर्म है वो भी डिक्रीज कर जाएगा ना। देखो अगर पटेला बाजा के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, पटेला बाजा में द पटेला हैज़ मूव्ड एबनॉर्मली इन्फीरियरली, है ना, एंड अब जाके नीचे आके ये दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में जाके फिट हो गया, तो इट मीन्स नीचे आके पटेला थोड़ा सा अंदर की तरफ भी तो मूव किया ना, थोड़ा सा फीमर की तरफ भी तो मूव किया ना। तो इट मीन्स जब ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो इन दैट केस द लेंथ द मूवमेंट आर्म बिटवीन द जॉइंट एक्सिस एंड द क्वाड्रिसेप टेंडन इट हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। तो इन दैट केस अगेन टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो मूवमेंट आर्म होगा वो भी तो हमारा काफ़ी कम हो जाएगा ना। ये बात सबको समझ आएगी नहीं, या मैं रिपीट करूँ फिर से? हाँ, आई एम सेइंग, मैं फिर रिपीट करूँ। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो अगर हम लैटरल साइड से अगर हम देखते हैं, तो ओके लैटरल साइड से हमें ये देखने को मिल रहा है कि डिस्टली हमारा जो दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में जो स्पेस है इट इज़ मच डीपर, जितना हम नीचे की तरफ जाते हैं एंड जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतना इट इज़ मच शैलोअर, है ना, जो कि हमने यहाँ पे ये देख लिया। नाउ द थिंग इज़ कि जितना अगर पटेला बाजा की अगर हम बात करते हैं एंड द पटेला इज़ प्रेजेंट एबनॉर्मली इन्फीरियर टू द प्लेस जहाँ पे वो प्रेजेंट होना चाहिए था, तो इन डैट केस इवन तो ये तो हमें पता है कि पटेला इन्फीरियरली मूव कर गया, लेकिन इन्फीरियर मूव करने के साथ में पटेला थोड़ा सा अंदर की तरफ भी तो मूव किया ना, बिकॉज डिस्टली दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में जो नॉच है दैट इज़ मच डीपर। तो जैसे ही पटेला इन्फीरियरली मूव करता है वो अंदर की तरफ घुस जाता है बिटवीन बोथ द कॉन्डाइल्स, एंड थोड़ा सा बैकवर्ड्स अंदर की तरफ मूव करता है। एंड जैसे हम नी एक्सटेंशन करते हैं इट मूव सुपीरियरली एंड ऑल्सो इट मूव्स सुपरफिशियली एज वेल, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा एंटीरियरली एंड देन इट मूव सुपीरियरली। तभी तो हम नी एक्सटेंशन में इजीली वी कैन पैल्पेट द पटेला, लेकिन जब नी फ्लेक्शन जब हम करते हैं हमें ऐसा नहीं लगता कि ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में सारा स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, मतलब हमारे कॉन्डाइल्स एंड पटेला का सुपरफिशियल मोस्ट पार्ट तीनों एक ही प्लेन के अलॉन्ग आ गए ऑलमोस्ट, बिकॉज जो पटेला है वो इन्फीरियरली मूव किया एंड दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में जाके फिट हो गया, फिर थोड़ा सा बैकवर्ड मूव किया एंड अब जाके ये ऑलमोस्ट एक प्लेन में आ गया। लेकिन जब नी एक्सटेंशन हम करते हैं उस टाइम पे पटेला को उस नॉच से बाहर निकलना पड़ेगा एंड तब जाके वो सुपीरियरली मूव करेगा एंड नाउ वी कैन इजीली सी द बम्प ऑफ द पटेला जब हम नी एक्सटेंडेड रखते हैं।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम नी जो पटला जो है वो हमारा जब इंफीरियरली मूव करेगा ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन एंड इट गोज इनसाइड इनटू द नॉच, तो इन दैट केस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम देख रहे थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस वन ना, shortest distance between the fulcrum and the quadriceps tendon, it will also decrease. जैसे ही पटला हमारा inferiorly मूव किया, ये जाके यहाँ पे फिक्स हो गया दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में, यहाँ पे कहीं, तो हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कम हो गया ना। लेकिन जैसे ही हमने नी एक्सटेंशन में लेकर आए, इसको पहले तो बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ये आगे मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो अब हमारा जो लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, फिर बताऊँ कि ठीक है। तो कैन वी से कि इन केस ऑफ पटेला बाजा द मूवमेंट आर्म और द एफर्ट आर्म ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल्स इट डिक्रीजेस, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Sir. ओके। तो इट विल डिक्रीज फॉर श्योर बिकॉज पटेला इज मूविंग बैकवर्ड्स एज वेल, थोड़ा पोस्टीरियरली भी मूव कर रहा है एंड इट गेट्स फिट इनटू दिस इंटरकॉन्डलर नॉच रीजन, है ना। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम अप टू द पटेला इट डिक्रीजेस, है ना, द मूवमेंट आर्म डिक्रीजेज एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे तो ठीक है, तो वी कैन से द मूवमेंट आर्म इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज और इट इज डिक्रीज एंड इसके अलावा पटेला ऑल्टा में द मूवमेंट आर्म ऑल्सो इंक्रीजेज ऑफ द क्वाड्रिसेप्स टेंडन। इसके अलावा पटेला स्टेबिलिटी इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज इन केस ऑफ पटेला ऑल्टा। तो अगर कहीं पे भी अगर आपको ये रेशो अगर देखने को मिलता है, दिस रेशो द इंसॉल्व साल्विटी रेशो है इंडेक्स, तो इसमें अगर ये रेशो, अब आई थिंक हम इजीली नाउ वी कैन फिगर आउट ना, लेट्स से अगर हम रेशो बोलते हैं कुछ भी 3:1 हो गया या 3:2 हो गया, तो जहाँ पे भी पहली वैल्यू ज़्यादा है एंड दूसरी वैल्यू कम है, तो वहाँ पे इट इज़ सपोज टू बी इन विच वन, पटेला ऑल्टा या पटेला बाजा? व्हाट डू यू थिंक? रेशो में पहली Alta. पटेला ऑल्टा, एग्जैक्टली, है ना, पटेला ऑल्टा, जहाँ पे पहला वाला जो है वो दैट इज शोइंग द लेंथ ऑफ द पटेला टेंडन। तो नाउ दैट इज इंक्रीज 3:2 ले लो, 5:1 ले लो, 5:2 ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, पहली की वैल्यू ज़्यादा है देन द सेकंड वन, तो इट इज सपोज टू बी पटेला ऑल्टा। एंड अगर दूसरे पार्ट की वैल्यू ज़्यादा है रेशो में पहले वाले से, दैट इज कॉल्ड एज पटेला बाजा। ओके, बस ये लास्ट स्लाइड की मैं बात करता हूँ, उसके बाद वी विल जस्ट फिनिश इट ऑफ। तो okay, now talking about the movements of the patella during patellar flexion and patellar extension. Okay, तो हमें ये चीज़ पता है कि जब हम नी फ्लेक्शन कर रहे हैं तो पटेला इज मूविंग इन्फीरियरली, जब हम नी एक्सटेंशन कर रहे हैं तो पटेला इज मूविंग सुपीरियरली। नाउ थिंग इज कि ओके, किस तरह से मैं इसको शो करूँ? देखो इस तरह से देख लेते हैं हम, नहीं चलो लेट्स सी लाइक दिस। ओके, द थिंग इज़ कि देखो ये हमारा डिस्टल कॉन्डाइल प्रेजेंट है फीमर का, ये हमारा फीमर का डिस्टल कॉन्डाइल्स है एंड पटेला के लिए बहुत बड़ा पटेला है। हाँ, इसकी हम बात कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। देखो ये लेट्स से ये हमारा पटेला है एंड दिस इज द कॉन्डाइल, ये हमारा कॉन्डाइल है, ये पटेला प्रेजेंट है। नाउ हमने ये देखा कि जब पटेलर फ्लेक्शन हो रहा है, नी फ्लेक्शन के टाइम पे, द पटेला इज मूविंग इनफीरियरली लाइक दिस, एपेक्स इज मूविंग बैकवर्ड्स लाइक दिस, है ना। एंड जैसे ही नी एक्सटेंशन होता है उस टाइम पे पटेला मूव सुपीरियरली एंड उस टाइम पे पटेला मूव्स लाइक दिस, एपेक्स मूव्स एंटीरियरली, है ना। दिस इज पटेलर एक्सटेंशन, दिस इज पटेलर फ्लेक्शन। यहाँ तक हमें ये चीज़ क्लियर है। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं किसी चीज़ की बात, हाँ ओके, अगर हमें यहाँ पे बात करनी है कि अगर हम इफ़ वी हैव अ लुक एट द एरिया ऑफ द पटेला विच इज़ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फीमर, तो इसको हम किस तरह से देख सकते हैं? अगर हम नी फ्लेक्शन की बात करें, नी फ्लेक्शन के टाइम पे डोंट यू थिंक एट कंप्लीट नी एक्सटेंशन सिर्फ हमारा एपेक्स ऑफ द पटेला इज इन कॉन्टैक्ट विद द फीमर, यस और नो? जब हमारा कंप्लीट नी एक्सटेंशन में है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, इस पर ध्यान देना, जब कंप्लीट नी एक्सटेंशन में है उस टाइम पे पटेला का सिर्फ एपेक्स जो है दैट इज ओनली इन कॉन्टैक्ट विद द फीमर, yes or no, like this. And as the knee flexion increases, okay, as the knee flexion increases it moves like this. तो don't you think कि जितना knee flexion increase कर रहा है and जितना पटेला inferiorly move कर रहा है, उतना अगर हम बैक posteriorly अगर हम देखते हैं उतना inferior superiorly हमारा area of contact बढ़ता जा रहा है। मैं फिर से दिखाता हूँ। At complete knee extension it's like कि हमारा सिर्फ apex जो है that is in contact with the femur, but as we are increasing the knee flexion patella is moving inferiorly and अगर आप सिर्फ पटेला की सरफेस की अगर आप तरफ देखो ना, तो the area of contact of the patella it is moving from inferior to superior। पहले सिर्फ inferior most part पटेला का was in contact with the femur,
लेकिन जैसे ही हमारा पटेला इन्फीरियरली मूव किया तो हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो पटेला का था वो इन्फीरियर से सुपीरियर की तरफ मूव किया। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इस चीज़ पे सब लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं? ये मैंने बड़ी मुश्किल से जाके ये चीज़ फिगर आउट करेगी, ये चीज़ मुझे समझानी कैसे है, बिकॉज ये चीज़ इस चीज़ के बिना समझना मुश्किल है ना, कि जैसे पटेला एक्सटेंशन से फ्लेक्शन में जब जा रहा है तो द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट एक्सटेंशन में, मतलब यहाँ पे वी कैन सी दिस कि कंप्लीट एक्सटेंशन में, और वी कैन से इन 20 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन, 20 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में सिर्फ इन्फीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द पटेला वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द फीमर। लेकिन अब हमने नी फ्लेक्शन इंक्रीज किया तो अब हमारा मिड पार्ट ऑफ द पटेला ऑल्सो केम इन कॉन्टैक्ट विद द फीमर, है ना। एंड जैसे हमने नी को लेकर आए इन ऑलमोस्ट 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, तो इन दैट केस इवन द सुपीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द पटेला केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द फीमर। तो इट मीन्स कि area of contact is going from inferior part to the superior, or we can say inferior superiorly. तो कहीं पे if they ask this question कि the area of contact of the femur during knee flexion it moves from, फिर options में आ गया inferior superiorly, superior inferiorly, lateral medially, जो भी है मतलब इस तरह से भी, तो you must know this ना कि it is moving inferior superiorly. Am I clear with this? Yes. ठीक है, आज माम कि ये चीज़ सबको क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड देर इज़ अनदर थिंग कि एक तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गया, अलॉन्ग विद दैट 90 डिग्री तक हमने बात कर लिया। 90 डिग्री के बाद थोड़ा सा चीज़ चेंज होती है। 90 डिग्री के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, एक बार 90 डिग्री में कंप्लीट कॉन्टैक्ट पूरा हो चुका है पटेला का, इसके बाद इट मूव्स अ बिट, थोड़ा सा सुपीरियरली मूव करेगा फिर से, मतलब 90 डिग्री के बाद यहाँ पे लिखा है कि द बियॉन्ड 90 डिग्री flexion the area of contact it begins to migrate inferiorly once again, मतलब थोड़ा सा सुपीरियरली हमारा पटेला मूव करता है आफ्टर 90 डिग्री, लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट। लेकिन इसके अलावा एट फुल फ्लेक्शन, यहाँ पे फुल फ्लेक्शन जब नी का हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट एट 135 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 135 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन, इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि दैट द पटेला इज लॉज्ड इन द इंटरकॉन्डलर ग्रूव, lateral and odd facets are in contact and the medial facet is completely out of contact। देखो हमने जब पटेला के फेसेट्स की बात कर रहे थे, दिस इज द lateral facet, दिस इज द medial facet and दिस इज द odd facet, है ना। तो जब तक हमारा नी 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तब तक हमें देखने को मिल रहा है कि जो lateral facet है इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द lateral condyle of the femur and medial facet जो है इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द medial condyle of the femur, है ना। एंड पूरे टाइम पे दोनों का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो इंक्रीज करता जा रहा है, मतलब पटेला का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है दैट इज मूविंग फ्रॉम इन्फीरियर पार्ट टू द सुपीरियर पार्ट। लेकिन वंस इट क्रॉसेज द 90 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन, या फिर वी कैन से कि जब ये एक बार कंप्लीट नी फ्लेक्शन में आ जाता है, तो अब यहाँ पे देखोगे, देखो अभी राइट नाउ वी कैन सी दिस कि अभी हम 90 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसने जो शेडेड एरिया दिखाया हुआ है इसमें इसने ऑड फेसेट को इंक्लूड नहीं किया। ऑड फेसेट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पिक्चर ना। ऑड फेसेट कहीं पे भी कांटेक्ट में नहीं आ रहा है पूरे नी फ्लेक्शन में, सिर्फ हमारा मीडियल फेसेट एंड लैटरल फेसेट कंप्लीटली कांटेक्ट में आ रहे हैं एज द पटेला इज मूविंग इन्फीरियरली, जैसे हमारा नी फ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन ऑड फेसेट इज नॉट एट ऑल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फीमर। लेकिन वंस वी कंप्लीट नी फ्लेक्शन, जब हम एक बार नी फ्लेक्शन कंप्लीट कर देते हैं 135 डिग्री, only at that point of time we see this कि हमारा उस टाइम पे the medial facet it completely goes out of contact of the femur, मतलब medial femoral condyle से हमारा medial facet जो है it completely goes out of contact and complete knee flexion के टाइम पे it is only the lateral facet majorly and उसके अलावा the odd facet, छोटा सा odd facet and the medial facet, these are the two structures of the patella which are only in contact with the femur and not the medial facet. Medial facet is not at all in contact with the medial condyle of the femur when the knee is in complete knee flexion. Am I clear with this? हमें यहाँ पे दो चीज़ों की बात करनी है, आप लोग सुन रहे हो ना? ओके, तो द थिंग इज़ कि हमें यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि दैट द एरिया ऑफ ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, अभी हम सिर्फ फ्लेक्शन की बात करें, एक्सटेंशन का मत सोचना, बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ पे चीज़ें उल्टी हो जाएगी। एक बार हमें ये समझ आ गया तो वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट द थिंग इज़ कि ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पटेला इट माइग्रेट्स इन्फीरियर सुपीरियरली, इतना हमें समझ आ गया है।
and almost up to 90 degree of knee flexion. And 90 degree of knee flexion, the lateral facet is in contact with the lateral condyle of the femur, and the medial facet is in contact with the medial condyle of the femur. But once it goes into complete knee flexion के time पे what we see that the medial facet it completely comes off the contact, मतलब it is not at all in contact with the medial condyle, and in complete knee flexion at 135 degree of knee flexion there are only the lateral facet जो कि contact में होगा with the lateral condyle, and only the odd facet which will be in contact with the medial condyle of the femur, and not at all the medial facet. क्या ये दो चीज़ें हमें क्लियर हुई कि नहीं हुई? Yes. Okay, तो okay great. So the thing is कि if I ask you कि 90 degree of knee flexion तक क्या हमारा odd facet कभी भी contact में आता है? No, नहीं ना? No, sir. है ना? 90 degree of knee flexion तक हमारा odd facet हाँ it never comes in contact with the femur. Only once it crosses the 90 degree of flexion, or specifically जब when it completes the knee flexion, only then it comes in contact with the face with the femur, and उसके पहले it never comes in contact. And उस time पे there is this medial facet which is not at all in contact with the medial condyle. Okay, एक तो चीज़ हमने ये बात कर ली. This was really important. ओके एक बार आप इसको रीड कर लेना. ये सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे मतलब समझा लिया, बट एक बार इसको रीड करना. कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, कुछ भी चीज़ रही नहीं है इसमें से, ठीक है. पर सेकेंड चीज़ को यहाँ पे बस मैंने एक्सप्लेनेशन में रखा हुआ है, ताकि अगर आप इसको रीड करोगे तो इन दैट केस रीड करके भी हमें समझ. ओके, एंड इसके अलावा वी हैव टॉक्ड अबाउट द पटेलर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. वी हैव टॉक्ड अबाउट द टिल्टिंग ना. हमने फ्रंटल एक्सिस के अराउंड हमने टिल्टिंग की बात कर ली है. एंड मुझे मेजरली इसकी बात करनी थी, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन. कहाँ गया? इसकी बात करनी थी. चलो एक ये चीज़ है यहाँ पे. द थिंग इज़ कि हमने ये डिस्कस किया था कि विथ नी फ्लेक्शन के साथ में हमें ये समझ आता है कि नी द पटला इट शोज ऑल द मीडियल साइड मूवमेंट्स ना, मतलब मीडियल साइड की तरफ ट्रांसलेट कर रहा है, मीडियल साइड की तरफ रोटेट कर रहा है, एंड मीडियल साइड की तरफ स्पिन कर रहा है. अब ये तीन मूवमेंट्स है क्या बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि जब भी हम नी फ्लेक्शन की बात करते हैं तो नी फ्लेक्शन में पटिला की मूवमेंट, बिकॉज पटिला डायरेक्टली इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द टीबिया ना, मतलब जो हमारा क्वाड्रिसेप टेंडन है वो इवेंचुअली पटिला टेंडन में कन्वर्ट हो रहा है एंड गेट्स अटैच्ड विद द टीबिया. द थिंग इज़ कि जो टीबिया का रोटेशन होता है ना, टीबिया का रोटेशन हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द मूवमेंट ऑफ द पटिला. मतलब कि टीबिया का जो जिस तरफ टीबिया रोटेट करेगा, जो हमने कल बात करी थी ना, टीबियल टॉर्जन्स, मीडियल एंड लैटरल टीबियल टॉर्जन, या फिर मीडियल एंड लैटरल टीबियल रोटेशन. कोई बताएगा हमने कौन से एक्सिस के अराउंड बात कर, मतलब वो एक्सिस जो था वो कहाँ से पास कर रहा था? अराउंड द मीडियल, थ्रू द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया और द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया. मीडियल कॉन्डाइल से पास कर रहा था ना, जो हमने बिल्कुल कल लास्ट वाले डायग्राम में जो हमने डायग्राम देखा था, जिसमें मीडियल कॉन्डाइल से वर्टिकल एक्सिस पास कर रहा था, एंड उसके अराउंड द टीबिया वाज शोइंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, या मीडियल एंड लैटरल टीबियल रोटेशन या टॉर्जन बोल दो. द थिंग इज़ कि टीबिया के रोटेशन की वजह से हमें पटिला के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, कि पटिला का जो मूवमेंट है वो टीबिया के मूवमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस होता है. द थिंग इज़ कि जब हम नी फ्लेक्शन कर रहे हैं तो नी फ्लेक्शन के टाइम पे कोई बताएगा, सादिया आपने फोटो भी सेंड करी थी, कि नी फ्लेक्शन के टाइम पे द टीबिया इट इज़ रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन, मीडियल और लैटरल? व्हाट डू गाइस थिंक? medial. It goes into medial rotation ना. So it means if the tibia is going into medial rotation during knee flexion, so it means the patella is also supposed to show all the medially directed movements during knee flexion ना. तो इट मीन्स सारे के सारे हम देखेंगे कि पटिला के ऊपर सारे मीडियल साइड मूवमेंट्स होंगे जब भी नी फ्लेक्शन हो रहा होगा, बिकॉज देर इज दिस मीडियल रोटेशन ऑफ द पटिला, एंड वी कैन से द रोटेशन ऑफ द पटिला हैज़ अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द मूवमेंट ऑफ द पटिला रादर देन द रोटेशन ऑफ द फीमर. ओके, नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे तीन मूवमेंट्स की हम बात कर सकते हैं. द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मूवमेंट दैट इज पटिलर टिल्टिंग. देखो द थिंग इज कि जैसे हमने स्कैपुला की बात करी थी ना, स्कैपुला की सारे मूवमेंट्स एक साथ होती है. मतलब जब मैंने आर्म एलिवेशन किया तो स्कैपुला वेंट इनटू प्रोट्रैक्शन, एलिवेशन, टिल्टिंग एंड सारी चीज़ें हमें देखने को मिली. लेकिन द थिंग इज़ कि हम सबको इंडिविजुअली पढ़ते हैं, लेकिन सारी मूवमेंट्स ऑफकोर्स एक साथ होती है. लाइक वाइज वी कैन सी दिस हेयर एज वेल.
कोई भी पर्टिकुलर ट्रांसलेशन अकेला नहीं होगा। हाँ, अगर हम पैसिवली करें तो बात अलग है, लेकिन अगर हम फिजियोलॉजिकल नेचुरल नी मूवमेंट की बात अगर हम करते हैं, नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो उस केस में द पर्टिकुलर विल शो अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मूवमेंट्स, द पर्टिकुलर ट्रांसलेशन, पर्टिकुलर टिल्टिंग एंड मतलब पर्टिकुलर शिफ्टिंग, टिल्टिंग एंड स्पिनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर दीज टू थिंग्स। एक तो हमारा हो गया पर्टिकुलर टिल्टिंग, दैट इज अराउंड द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। वी कैन से कि पर्टिकुलर जो है इट इज टिल्टिंग, या तो और वी कैन से जो एपेक्स है it is shifting more towards the lateral, towards the medial side, that is called as medial tilting, and towards the lateral side, that is called as lateral tilting. And इसके अलावा if the patella as a whole it shifts towards the lateral side, that is called as lateral shifting, and medial side, that is called as medial shifting. जैसे नाम है वैसे ही मूवमेंट हमें समझ आ रहा है इसका ना। एंड लाइकवाइज वी कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द स्पिनिंग, मतलब स्पिनिंग मूवमेंट जो हो रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड, एंड जो ट्रांसलेशन हो रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा दैट विल बी लाइक दिस ना, मतलब जहाँ पे हमें ट्रांसलेशन भी देखने को मिल रहा है, एंड देन देर इज दिस टिल्टिंग एज वेल, दैट इज कॉल्ड एज स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द patella. तो वी कैन से देर कैन बी मीडियल स्पिनिंग एंड देर कैन बी लैटरल स्पिनिंग. तो इट मीन्स अगर हम स्पिनिंग की बात करते हैं, स्पिन ऑफ द डेल्टा, स्पिन ऑफ द patella, तो इन दैट केस वी कैन से कि इट इज हैपनिंग अराउंड द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, बट एट द सेम टाइम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द मीडियल एंड द लैटरल साइड. यस और नो? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज द patella एंड ये हमारा एक्सिस है. एक तो क्या चीज़ है कि patella हमारा स्पिन कर रहा है अराउंड द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एक तो patella स्पिन कर रहा है, एंड द अदर थिंग इज कि patella इज ऑल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मीडियल एंड द लैटरल साइड, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है. तो डोंट यू थिंक कि देर इज दिस मूवमेंट कि मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड patella इज शोइंग, मतलब देर इज दिस मूवमेंट एज वेल एंड देर इज शिफ्टिंग एज वेल. तो इट मीन्स हमें ये वाला मूवमेंट देखने को मिलेगा ना. There is anterior posterior axis के around spinning, and then there is this translation of the anterior posterior axis as well towards the lateral and the medial side. तो कुछ इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा of the patella. मतलब that is a combination of tilting and spinning, that is called as shifting, that is called as spinning of the patella. तो यहाँ पे तो थिंग इज कि इट इज़ रियली सिंपल कि जो भी हमें मीडियल साइड मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब मीडियल स्पिनिंग, मीडियल शिफ्टिंग, मीडियल टिल्टिंग, that all will happen when the knee joint is going into flexion, and उसका opposite lateral side tilting, spinning, shifting देखने को मिलेगा when the knee is going into extension. Are we clear with this? Yes. ठीक है, ये हमने बात कर ली अबाउट शिफ्टिंग, टिल्टिंग, नहीं सब. इसके अलावा हमने इससे पहले बात करी थी अबाउट वर्टिकल मूवमेंट, जहाँ पे patella was going into superior and inferior movements, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे बात करी थी अबाउट patella स्टेबिलिटी की. patella स्टेबिलिटी कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती है, कहाँ पे इंक्रीज है, कहाँ पे डिक्रीज करती है. ओके, वो हमारा हो गया. एंड देर इज़ दिस थिंग एज वेल कि यहाँ पे patella जो है इट एज अ होल इट शिफ्ट टुवर्ड्स द मीडियल साइड ना. तो देर इज दिस मीडियल शिफ्टिंग ऑफ द patella ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन ना. तो नी फ्लेक्शन के टाइम पे patella शिफ्ट अबिट मीडियली, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ इन द फर्स्ट 30 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन. पहले 30 डिग्री के बाद में द patella इट बिकम्स मोर और लेस स्टेबल. इसके बाद में इसका लैटरल और मीडियल शिफ्टिंग की अगर हम बात करें, इट इज़ नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट, लेकिन पहले 30 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन में इट शिफ्ट टुवर्ड्स द मीडियल साइड मैक्सिमली. उसके बाद ये काफ़ी कम शिफ्ट करता है. ठीक है, ओके, आई होप यहाँ इसको हम डन कर देते हैं. आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, आई थिंक आज वाली क्लास थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. मेरे को पढ़ाने में मज़ा आया आज वाली क्लास में. मुझे ऐसा लगता है कि जिस क्लास में मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा होता है ना, तो आई थिंक आप लोगों को सुनने में मज़ा आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं. मतलब जैसे ये वाला जो टॉपिक था, इट वॉज मोर ऑन द मूवमेंट, तो यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा था समझने में. लेकिन जैसे कहीं पे सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. मतलब वहाँ थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, मतलब वही तो स्ट्रक्चर है, अब क्या ही इसके बारे में पढ़े, तो मतलब वो हो जाता है. आई अंडरस्टैंड, वो चीज़ रहती है वैसे. तो इसके बाद हम कल इसको डन कर देंगे, एंड विल बी स्टार्टिंग विथ ऑर्थो फ्रॉम टुमारो. तो ये कितना है, ये इसकी हमने बात कर ली है मोरलेस, पर स्टिल इसको हम देख लेंगे एक बार कि हाउ दिस वैल्गस, फिजियोलॉजिकल वैल्गस, बिकॉज एल्बो में भी हमारा फिजियोलॉजिकल वैल्गस डिक्रीज करता है जब हम एल्बो फ्लेक्शन करते हैं. लाइकवाइज नी फ्लेक्शन में भी, मतलब हम फर्स्ट 20 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन के बाद में हमारा फिजियोलॉजिकल वैल्गस डिक्रीजेस, एंड देन वी कैन से हमारा जो patella है इट बिकम्स मोर और लेस स्टेबल, एंड इसका मतलब लैटरल और मीडियल साइड पे इसकी इंस्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है. एंड एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि ड्यूरिंग कंप्लीट नी एक्सटेंशन
जो हमारा जो ये हम देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि लैटरली डायरेक्टेड फोर्स जो है हमारा पटेला के ऊपर बिकॉज ऑफ द quadriceps एंड द पटेला टेंडन, इसको सो एज टू प्रिवेंट एक्सेसिव लैटरल ट्रांसलेशन, हमारी मेजरली कौन सी मसल है विच इज ट्राइंग टू प्रिवेंट द लैटरल ट्रांसलेशन ऑफ द पटेला ड्यूरिंग कंप्लीट नी एक्सटेंशन? medialis. Vastus medialis, exactly, and that is at an angle of 40 degree. 40 55 तो बैकवर्ड्स है, ठीक है, 40 डिग्री पे। अब ये 40 डिग्री पे सोचो, सिर्फ ये 40 डिग्री पे होता तो इन दैट केस तो फिर तो ये पटेला मीडियल साइड पे शिफ्ट हो जाता। अब उसको भी तो हमें मेंटेन करना है ना, तो अब चलो यहाँ पे एक और मसल को ऐड कर देते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा 35 डिग्री पे रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक बैलेंस मेंटेन रहे इन सब के बीच में। तो भाई अब देख लो कितना प्रिसाइसली हर चीज़ को रखा गया है यहाँ पे ताकि चीज़ों का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये कर लेंगे हम। इसके बाद क्यू एंगल हो गया, बस इसके बाद थोड़ा बहुत कंडीशन है। ओके, ये हमारा मैक्सिमम 20 मिनट का बचा है, उसके बाद में विल स्टार्ट विद ऑर्थो फ्रॉम टुमारोज क्लास। फाइनली हमारा बायोमैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा, बट मैं बोलूँगा अनफॉर्चुनेटली बायोमैकेनिक्स कंप्लीट होगा, बट आई थिंक ये चीज़ होती है कि एक टाइम के बाद में थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग, एक सब्जेक्ट ना तो थोड़ा सा बोरिंग होना शुरू हो जाता है, तो इसके बाद एकदम से ऑर्थो स्टार्ट होगा तो अगेन एक वो नया एक वो इंटरेस्टिंग चीज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी उसमें। ओके, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन सेंड करे हुए हैं मेरे को पर्सनली, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं आज पक्का उन सबके रिप्लाइज कर दूंगा, शाम तक सबके मैं रिप्लाइज कर दूंगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन वगैरह मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करे हैं, ठीक है, उनके मैं कर दूंगा रिप्लाइज। ओके, चलो लेट्स वाइंड अप एंड थैंक यू एवरीवन। Thank you, Thank you. sir. ओके, थैंक यू।